हम ये पढ़ रहे थे ये इफ बिहाइंड योर डिवोशन एंड सरेंडर, ये तो हो गया अपना। You make a cover for your desires, egoistic demands, and vital insistences. If you put these things in place of the true aspiration or mix them with it and try to impose them on the divine Shakti, then it is idle to invoke the divine grace to transform you. If you open yourself on one side or in one part to the truth, and on another side are constantly opening the gates to hostile forces, it is vain to expect that the divine grace will abide with you. You must keep the temple clean if you wish to install there the living presence. If each time the power intervenes and brings in the truth, you turn your back on it and call in again the falsehood that has been expelled, it is not the divine grace that you must blame for failing you, but the falsity of your own will and the imperfection of your own surrender. If you call for the truth, and yet something in you chooses what is false, ignorant, and undivine, or even simply is unwilling to reject it altogether, then always you will be open to attack, and the grace will recede from you. Detect first what is false or obscure in you, and persistently reject it. Then alone can you rightly call for the divine power to transform you. Do not imagine that truth and falsehood, light and darkness, surrender and selfishness can be allowed to dwell together in the house consecrated to the divine. The transformation must be integral, and integral, therefore, the rejection of all that withstands it. Reject the false notion that the divine power will do and is bound to do everything for you at your demand. And even though you do not satisfy the conditions laid down by the Supreme, make your surrender true and complete. Then only will all else be done for you. इसमें समस्या हमारे ये थी कि ट्रू और कंप्लीट आपका सरेंडर हो गया तो और फिर बाद में बचा क्या? एक तरफ कह रहे हैं शुद्धिकरण हो जाए, तो आप ये करो, तो फिर कैसे करो? करो कैसे? समस्या ये है। Reject to the false and indolent expectation that the divine power will do even the surrender for you. The Supreme demands your surrender to her, but does not impose it. You are free at every moment till the irrevocable transformation comes. To deny and to reject the divine or to recall your self giving, if you are willing to suffer the spiritual consequence. Your surrender must be self made and free. It must be the surrender of a living being, not of an inert automaton or mechanical tool. An inert passivity is constantly confused with the real surrender, but out of an inert passivity, nothing true and powerful can come. It is the inert passivity of physical nature that leaves it at the mercy of every obscure or undivine influence. A glad and strong, helpful submission is demanded to the working of the divine force. The obedience of the illumined disciple of the truth, of the inner warrior who fights against obscurity and falsehood, of the faithful servant of the divine. This is the true attitude, and only those who can take and keep it. यही मैंने कल कहा था, कीप इट बाद में होगा, पहले टेक इट। टेक इट के लिए कोई तैयार ही नहीं है। उसके लिए जो जो प्री रेक्विजिट्स है, एक तैयार नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो एक प्रिजर्व ए फेथ अनशेकन बाय डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डिफिकल्टीज एंड shall pass through the ordeal to the supreme victory and the great transmutation. इसमें कुछ इश्यूज थे, ये कैसे हो कैसे नहीं हो। अब डायरेक्टली इसका उत्तर
मैं तो कंटिन्यूअसली इस बारे में, और ये खाली कल ही नहीं सोच रहा, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ही यही है, ये बात क्या है? इसमें कुछ चीज़ें बिना माँ और श्री अरविंद को अलग से देखे कुछ मैं इश्यूज़ आपके सामने रखता हूँ, आपके सामने पहले समस्या क्लियर हो। एक चीज़ तो ये कितनी मुश्किल है, इसका कैसे पता चले, इससे तो जो लोग सिंसियरली इस पथ के ऊपर गए हैं, माँ श्री अरविंद के जो पार्षद रहे हैं, उनका जीवन चरित्र और लेटर्स ही एकमात्र इसके लिए मार्गदर्शक हैं। लेटर्स जो श्री अरबिंदो ने उन साधकों को लिखे जो बिल्कुल, और कोई दूसरी पुकार नहीं और कोई दूसरी बात नहीं, वो ही हमारे लिए इस क्षेत्र के अंदर हमको गाइड कर सकते हैं कि प्रकृति किस तरीके से रिएक्ट करती है। आप क्लोज़ली जब देखते हो तो इश्यूज़ समझ में आते हैं। इश्यू इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये, कि यूँ ही एक साइकिक आ गया, आपने समर्पण कर दिया। ये इतनी सीधी-सीधी चीज़ इस तरीके से है नहीं। बहुत ज़्यादा पेचीदा है, ये आप कल्पना कर सको उससे ज़्यादा पेचीदगी है। मतलब आपको समझाने के लिए तो एक चीज़ है, पर मैं खुद इस प्रक्रिया को कैसे सारी को मैं रखूँ, और फिर हम सारे एक-दूसरे के पॉइंट्स टैली करते हैं, सपोज़ जो-जो इस मार्ग में आए और लंबे समय से इस मार्ग में हैं, वो भी टैली करें तो अलग-अलग, अलग-अलग, हाँ, कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, पर उसके अंदर भी शुद्धिकरण का क्या स्थान है? कल हम रात को इसी कई दिन से रात को इसी की चर्चा हमारी क्लास में भी कर रहे हैं। शुद्धिकरण क्या पहले आ सकता है? पहले अनुभव आ गया आपको, पहले ये गंभीर बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस क्षेत्र की कर रहा हूँ जो इसमें प्रवेश की बात है, और दूसरों की मैं बात नहीं कर रहा जो खाली इसकी सोच रहे हैं हम कैसे इसके अंदर प्रवेश करें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रवेश आइदर कर चुके या एकदम सीरियस हैं या लंबा चल चुके इसके ऊपर। जो बरसों से इसके ऊपर 40 साल से चल रहे हैं, 30 साल से चल रहे हैं, 20 साल से चल रहे हैं, सिंसियर हैं, और कोई दूसरी चीज़ उस उनको बाँध नहीं रही। घर है, परिवार है, बाहरी रूप से, फ़ॉर्मली नहीं बाँध रही उनको, पर फिर भी वो ये पाते हैं कि कहीं न कहीं ये कड़ियाँ बारीकी से जब जीवन का आकलन करते हो, अपने आप का समर्पण, सो कॉल्ड समर्पण करने के बाद, तब इश्यू समझ में आता है, कि ये होता नहीं। अभी तो दूसरी जगह खड़े होके हम सोचते हैं कि इस ये लाइन ऐसी है, उस पे जंप कर जाओ तो ये साधना हो जाती है। उस पाले में साधना, इस पाले में साधना नहीं है। इस तरीके की बातें हैं नहीं। आपने भगवा धारण कर लिया, उससे साधना हो गई, नहीं किया उससे नहीं हुई। ये कोई इतनी क्लियर कट बातें नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा विचित्र बातें हैं, और ये वहीं ली आती हैं जो जो कृष्ण प्रेम की पुस्तक में है, श्री अरबिंदो के लेटर्स में है, जो सबसे मुश्किल लेटर्स हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं हम ये। इन चर्चाओं का ये पहले कौन-सा आता है? हो सकता है आपको पहले शुद्धिकरण आ जाए, हो सकता है पहले आपके एक मूवमेंट आ जाए, पहले आपके इसमें कई तरीके की चीज़ें हो सकती है। आपके साइकिक प्रबल हो, क्लैरिटी बुद्धि में न हो, वो आपके लिए इनिशिएट कर दे, या किसी व्यक्ति में ऐसा होता है कि बाहरी प्रकृति आपको अपना दूसरा स्वरूप लगता है, आंतरिक प्रकृति अलग लगती है, आंतरिक वाली प्रकृति बाहरी के ऊपर दबाव डालती है, धीरे-धीरे प्रक्रिया ऐसे भी चालू हो सकती है। या ओवरहेड आपके जो सिर के ऊपर की चीज़ें हैं, वो दबाव डाले, वो परिवर्तन साधित कर दे, ये भी हो सकता है। अंतरात्मा आए, धीरे-धीरे और भागों में प्रवेश करे, ऐसे भी हो सकता है। ये 3-4 तरीके के सिनेरियोज़ हैं। कैसे होता है एग्ज़ैक्टली, कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। प्रयास यही है कि कैसे इसकी ओर ये हो। हम उसको डिफ़ाइन करने की, जानने की एक्चुअल में कोशिश कर रहे हैं। ये जो समस्याएँ मैंने कल आपके सामने प्रस्तुत करी, उनको एक्चुअली आप तब समझोगे जब एक इश्यू दिमाग में लेते हो और उसके संबंधित पत्र ले लेते हो। जो सो कॉल्ड एडवांस साधक हैं, आप बारीकी से देखोगे तो पता चलेगा कि इश्यू क्या है। यूँ आप विचार से देखोगे कुछ नहीं पता चलेगा। आप उसके जीवन को देखो, वो व्यक्ति उसको नज़दीक से देखो तो पता चल जाएगा, अरे यार ये बातें
और गंभीरता चीज की तब पता चल जाएगी। इसलिए मैं कुछ आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। अब ये क्या पिक्चर बनती है मेरे को नहीं पता। आप अगर इसमें प्रश्न पूछेंगे, आप इसमें स्पेसिफिक कुछ चीजें पूछेंगे, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। मैं कंटिन्यूअसली इसके ऊपर ड्वेल कर रहा हूं, पर वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ा रहा है। क्लैरिटी है, और उस सारे को कहा किस तरीके से जाए, एक चीज तो कह सकते हो आप। इतना विशाल क्षेत्र है, एक एक रूम का वर्णन कर सकते हो आप, लंबे समय तक कर सकते हो, फिर उससे एक पिक्चर बनती है, एक बात आती है। पर आप सोचो मैं कोई एक लाइनर कोई चीज दे दूं कि ये ऐसा है नहीं। ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, इतनी रिच चीज है, और वो भी जितना मैंने ट्रेस किया उतना ही दे सकता हूं मैं तो। भाई जितना मैं जिस पथ से नहीं गया, या कोई दूसरा दूसरे पथ से गया होगा, मैं कोई सुनी सुनाई कही कहाई ये ऐसे कोई कॉलम्स की वो बातें कर नहीं रहा यहाँ। यहाँ तो फ्रेश एकदम अनुभव की जो चीज है, मैं उसको रखता हूँ। वो चीजें कैसे रूप लेती है मेरे को खुद को नहीं पता। इसमें आपका योगदान, आपका इसमें इनपुट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहां नहीं समझ में आए या कोई बात है, वहां रोक लो, तो उसमें और कुछ अपने को क्लैरिटी इसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं, ये जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व है, पर अब कहने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा। आप अगर कोई चीज लिखोगे कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। सारी चीज तो कैसे लिख सकते हो, तो लिख के भी वो सारी सामने आ नहीं सकती। तो ये ऐसे है नहीं, ये इनर्ट पैसिविटी है। पहले आप सबमिशन में आ जाओ, पहले आप में प्योरिटी आ जाए, पहले ये हो जाए। किसी के अंदर हो जाता है, किसी के अंदर प्रक्रिया चालू हो जाती है, किसी को पता ही नहीं रहता ये क्या हो रहा है। हाँ, कुछ इसके संकेत हैं। कुछ मैं आपको अगर आप पूछते हो तो डेफिनेटली कि भी इसका क्या है, इसका क्या है, वो मैं निश्चित रूप से जितना उसको बता सकता हूँ उतना बता सकता हूँ। उसमें आपका इनपुट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक-एक मैं आपसे अब कुछ-कुछ चीजें शेयर करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई, ठीक। इसी किताब के अंदर अब 391 पेज है। जो ये दमदर है, उसमें कुछ-कुछ चीजें जो अपनी दमदर के तो शायद मैंने रेफरेंसेस आपको अपन ने 20वें वॉल्यूम के तो लिए थे, ये वाले लिए नहीं थे। ये कुछ-कुछ इसकी अब क्या पिक्चर बनती है, क्या नहीं है, इसके पॉइंट्स बना लो, जहां अटक जाओ, वो मेरे से पूछते रहो। उससे ये वाली चीज़ों के जो इश्यू है, कोई-कोई तार खुल जाएगा। इसमें जो समस्याएँ हैं, उसपे ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रकाश डालेंगे। मैं आपको कई वैराइटीज़ सामने रख देता हूँ। ये आज पूरी नहीं होंगी, ये तो कई क्लासेस में भी पूरी नहीं होंगी ये सारी वैराइटीज़। पर हाँ, क्लैरिटी आपको थोड़ी इसकी कितनी पज़लिंग है या कितना कॉम्प्लेक्स है, ये कुछ समझ में आएगा। X's letter is all right, and I accept it as the apology I demanded from her. But things cannot be quite as before. She must make reparation for her fault not only in words but in her conduct. श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने माफी मांग ली होगी। तो पर अब ये कह रहे हैं कि खाली शब्दों से नहीं होगा, पर उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आना जरूरी है। दैट मस्ट चेंज एंड चेंज ऑल टुगेदर। आप जब साधना अपना लेते हो, आप उस बैकग्राउंड से, ये पत्र ही एकमात्र माँ और श्री अरविंद के हैं, ये रिवीलिंग है। फिलोसॉफिकली समझने में एक चीज, पर जब व्यक्ति आता है, एक एक व्यक्ति के जीवन को आप देखते हो, आप दिलीप कुमार रॉय के जीवन को देखते हो, क्लैरिटी है। श्री अरविंद के साथ कई जन्मों से साथ आ रहे हैं, बुद्धि के अंदर कहीं कोई कमी नहीं, सारी बातें हैं। अकेले व्यक्ति को जो चॉइसेस श्री अरविंदो के लेटर्स हैं, वो लगभग सारे ही इनको ही हैं। मतलब आप ये देखिए, श्री अरबिंदो के जितने टोटल लेटर्स हैं, अकेले एक व्यक्ति को हैं, और वो फिर बाद में रेफर करते हैं
कृष्ण प्रेम को, कृष्ण प्रेम वाले रेफर करते हैं श्री अरबिंदो को। साधना के गहनतम इश्यूज, गहनतम इसके जो जो पैराडॉक्सेस हैं, वो सारी की सारी इस पुस्तक में योगी कृष्ण प्रेम वाली, यदि कोई समय हो सके, पर वो तो तब हो जब आप गंभीरता से, अभी मानसिक विकास इतना पर्याप्त नहीं है कि हम उसमें प्रवेश कर सकें। उसके लिए गंभीर मानसिक विकास की आवश्यकता है, जो मेरे को अभी तक नजर आया नहीं। अभी तक उसके लिए एलिजिबिलिटी मेरे को नजर नहीं आ रही कहीं भी, तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे। ये हतोत्साहित करने के लिए नहीं, प्रोत्साहित करने के लिए है कि आपको गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। ये साफ-साफ आकलन इस चीज का है कि अभी हमारा मानसिक विकास नहीं हुआ है। हमको लगता है, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी नहीं है। ये अब ये एक लेटर है श्री अरबिंदो का, दैट शी कैन चेंज इट if she wishes to do so, was shown when she began taking my darshan, and her behavior for some weeks was quite satisfactory. उसने मेरे दर्शन करने शुरू कर दिए और उसका बिहेवियर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। आप कह रहे हो श्री अरबिंदो को कैसे सामने मैं देख पाऊं, वहां ये है कि उसने अपने आप को श्री अरबिंदो से दूर कर लिया। दूसरी चीजें आपके अंदर, हम ये कह रहे थे कि ईच टाइम द ग्रेट ग्रेस इंटरवीन्स, आप भाग के दरवाजे बंद करते हो, श्री अरबिंदो साक्षात मौजूद हैं वहां, और ये क्या कह रहे हैं, ये बात सुनो तो आप। और ये श्री अरबिंदो के समय की बात है भाई। अगर ये लेटर हम इसकी तारीख देखें, 1944 की है, तो अब आप देखो उस समय क्या स्थिति रही होगी। जो हर कोई तो व्यक्ति नहीं रहे होंगे, कैसे क्या रहे होंगे, आप एक आइडिया तो लगाओ। जिनकी आप वाणियां पढ़ते हो, इन लोगों ने ये पुस्तकें लिखी है, वो पुस्तकें लिखी हैं, ये एडवांस साधक थे, ये वाले थे, ये हमारी प्रकृति की स्थितियां हैं। इसलिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ये फिलोसॉफीज वगैरह कोई काम की नहीं है, लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से। ये हमारे प्रकृति के तार तार खोल के सामने देते हैं। इसमें ये ना सोचिए कि कैसे फालतू लोग थे, कैसे ये थे। ये हमारी प्रकृति है। ये आपके सामने तब आएगी जब आप साधना अपनाओगे, अभी नहीं आएगी। अभी तो सेंस ही नहीं है कि कितनी गांठें हैं हमारी प्रकृति के अंदर। That she can change it if she wishes to do so was shown when she began taking my darshan, and her behavior for some weeks was quite satisfactory. अब quite satisfactory है उसका behavior, श्री अरबिंदो कह रहे हैं, ये दोनों परिप्रेक्ष्य समझो। Afterwards she called back into her the bad forces. हर बार माँ श्री अरविंद प्रवेश करते हैं, डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हैं। आप तो कह रहे हैं मैंने प्रार्थना करी, ये करी, वो करी, वहां तो ये वाली बात ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उसने फिर से बैड फोर्सेस को बुला लिया, which I had thrown out of her, and the recent outbreak was the result. आउटब्रेक कोई भी, और वो डिपेंड करता है, उसने हो हल्ला मचाया होगा, उसने कोई गंदी बातें कही होंगी, और वो गंदी बातें क्या हैं देखना आप आगे। कौन कह रहा है, किसके विषय में कह रहा है, कहां कह रहा है, देखो आप। दैट मस्ट नॉट हैपन वंस मोर, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। It is not possible anymore that the mother should show the same indulgence and leniency under great provocation as she did before, or that I should remain silent and let such things pass. हमको बैकग्राउंड का पता नहीं, पर जो भी रहा होगा बहुत गंभीर रहा होगा। ये एक साधक की बात चल रही है जिसने अपनाया है उनको गुरु रूप में। कितने पुरानी समय की ये बातें चल रही है सारी। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर एंड ट्रीटमेंट ऑफ हर मस्ट डिपेंड on her attitude towards the mother and her behavior in the recent outbreak. गुस्सा किया होगा, क्रोध किया होगा, जो भी उसने, या जो बदमाशी जितनी भी, इस हद तक बदमाशी कि श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं कि वंस मोर दोबारा नहीं रिपीट होनी चाहिए ये। She practically took the position that she refused to change anything wrong in her nature. आदमी ये पोजीशन ले लेता है, मैं अपने बीइंग का कुछ चेंज नहीं करूंगा। शी रिफ्यूज टू चेंज एनीथिंग रॉन्ग इन हर नेचर, रादर शी रिगार्डेड व्हाट इज बैड एंड रॉन्ग इन हर एज समथिंग नोबल।
ग्रेट एंड एडमिरेबल। आप सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए, ये किस व्यक्ति की बात चल रही है? जो रोंग है नेचर के अंदर, उसको बदलना तो दूर रहा, उसको रिफ्यूज कर दिया बदलने से। उल्टे जो आपके अंदर खराब चीजें हैं, उनको आप नोबल, ग्रेट, एडमिरेबल मान बैठते हो, और मां श्री अरविंद के सामने उसको दलील के रूप में पेश करते हो कि नहीं, यही चीज रहेगी, ये तो लिखित में है, अब कैसे मान लो आप? देखो आप, मैं जो कह रहा हूं इसलिए वो, और ये हमारे लिए फिर बाद में अब ग्राउंड दूसरा है। आप जब इनमें प्रवेश करोगे तो आप बातें समझोगे। ये बातें ये थोड़ी है कि आपने 4 पेज पढ़ लिए, उसके अंदर बेवकूफ की जैसे जाके इधर उधर की बातें कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं भी कोई मूलभूत उस तरीके से नहीं है। इस आधार के ऊपर आप क्लोजली व्यक्ति को देखो तो, और वो भी आप डीप डाउन हो तो पता चल जाएगा, बार्गेनिंग के अलावा कुछ नहीं है, एक जने में नहीं है और तो। इसलिए आप ये जो बातें कर रहे हो सरेंडर की, रिजेक्शन की, ये उदाहरण तो है नहीं इसके, इसके एक्चुअल उदाहरण नहीं है। हम कहां से आ गए? हम विचित्र थोड़ी हैं फिर, हम अलग से आ गए क्या? जिन लोगों ने सर्वस्व अपना दिया। अब ये तो साफ है लेटर, और मैं इतने, ये पूरी किताब में सारे, इसीलिए मैं इस किताब में से ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि आप ये सोचो और दूसरे वर्क्स, अरे दामोदर के अंदर ही है ये। हाँ, लेटर्स में भी मिल जाएंगे आप, क्योंकि लेटर्स के अंदर, क्योंकि लेटर ही तो है ये। जो दामोदर के थे वो दामोदर में भी ले लिए, और लेटर्स के अंदर उन सेक्शंस के अंदर भी चले गए, रिपीट हो रहे हैं ये लेटर्स में भी आ जाएंगे, ये इसमें भी है। If that remains her position, she cannot expect that we should accept it, nor would there be any reason for my giving her darshan. अब मैं उसको दर्शन दूं, इसका कोई रीजन नहीं है। आप देख रहे हो क्या बातें चल रही है? आप तो कह रहे हो मैं उनको पुकारता हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, ये वो सामने की बात कर रहे हैं। व्यक्ति कह रहा है, दबाव डाल रहा है कि मैं अपने बीइंग की जो खराब चीजें हैं, नोबल भी मानूंगा, ग्रेट भी मानूंगा, एडमिरेबल भी मानूंगा, दर्शन की मजबूरी है, लेऊंगा जब मर्जी होगी, नहीं लेऊंगा। श्री अरबिंदो के दर्शन, people are here to change what is wrong in their nature so that they may do an effective sadhana। इसलिए आप ये सोचते हो कि कहीं ये जो मैं कहता था, अब इस दृष्टिकोण से आप उसको इसके ऊपर रख के देखो, कहीं ये है नहीं ये बात। दुरुपयोग होता है इसको पढ़ के, ये पढ़ लेते हैं कि आपकी साधना माँ अपना लेती है, माँ ही आपकी साधना करती है। ये दुरुपयोग है इस बात का, ग्रेस शब्द का दुरुपयोग है, माँ की कृपा शब्द का दुरुपयोग है नहीं ये। एक्चुअल उन लोगों की बात देखें, उनमें तो थी नहीं। अब ये कोई नई खेप पैदा हो ही गई होगी भाई। इफ दे रिफ्यूज टू डू दैट, और इवन टू ट्राई, they are not real sadhaks or disciples and can expect nothing from myself or from the mother। और ये लाइफ डिवाइन की भी बात कर रहे होंगे, जाके व्याख्यान भी करते होंगे, पुस्तकें भी लिखते होंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। इससे ये भी पता चलता है कि प्रकृति क्या है, इससे ये भी पता चलता है कि आपके सामने क्या क्या चीजें हैं। इसीलिए सुबह जो मैं कह रहा था, तैयारी, आप वेद में, श्री अरबिंदो की पुस्तकों में, साधना में, जब तक किसी के हाथ के नीचे तैयारी नहीं कर रहे, आपकी सिंसियरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप टेक्स्ट को कैसे समझ रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। आप घोर अंधकार में हो, हम सब घोर अंधकार के अंदर हैं। डूबते को कभी कोई, कोई शैवाल है, काई है, उसके हाथ डाल लेते हैं, मेरे को ये तत्व मिल गया, कभी कुछ कभी कुछ। है नहीं। क्लोजली यदि आप देखोगे जीवन चरित को, अपन तो यहाँ सारे वही लोग हैं, यहाँ एकदम बिल्कुल प्योरली वही लोग हैं। बारीकी से देखते हैं तो पता चलता है यार, अब तो करने का आपको मौका मिला है, होता नहीं। और दूसरे की तो मैं, मेरे को पता नहीं, मैं तो मेरी देखता हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मैं तो आज तक मैंने कभी ये कहा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति सामने जिसके बचपन से और कोई दूसरी पुकार नहीं रही, ये बिल्कुल क्लैरिटी, बचपन से ये क्लैरिटी की करना तो यही है, जिसको कभी कोई महसूस और कोई दूसरी चीज हुई ही नहीं, और फिर भी जीवन में कुछ कर पाए नहीं, और अभी जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें कुछ नजर आता नहीं। तो इसका मतलब समस्या इतनी सामान्य नहीं है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं कुछ कहना तो चाह ही रहा हूँ। व्हाट वाज वर्स,
इससे भी खराब बात क्या है, शी सीम्ड प्रिपेयर्ड टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एलियन फोर्स, एक्टिंग अगेंस्ट द मदर, क्लेमिंग विक्ट्रीज अगेंस्ट हर, ट्राइंग टू लोअर हर इन द आईज ऑफ द साधक्स। कल्पना कर सकते हो इस चीज की? अरे ये माँ तो यो ही है, जाके चुगलियां करना माँ की, ये जैसा दिखा रही है वैसी औरत है नहीं। साधकों की आंखों में माँ को नीचा दिखाने का प्रयास करना, ये साधक कर रहा है ये। आप कह रहे हो हम भावना रखते हैं, अरे कहां से बच जाएंगे आप और मैं इस बात से? ये तो अभी हम सेफ इसलिए हैं क्योंकि माँ फोटो में है। कौन बच जाएगा इस बात से? कोई एक जना नहीं करता ये बात, कितनी भी बातें कर लो, अप्रोच ही नहीं है ये, हो सकता भी नहीं। ये भी जगत है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये भी जगत है, ये एक अलग जगत है जो मां श्री अरविंद ने निर्माण किया है, और इसमें प्योरिटी है, इसमें वो प्योरिटी है जो क्या बताएं। इस साधक को तो नजर आ नहीं रही ये बात, वो तो कर ही दूसरी चीज रहा है। औरत है ये कोई, ट्राइंग टू लोअर हर इन द आईज ऑफ द साधक्स, asserting itself and its ways। किसी और दूसरी शक्ति का आप इंस्ट्रूमेंट बनने का प्रयास कर रहे हो, मां को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो, मतलब आप तो भक्ति भाव छोड़ दो, नीचा दिखा रहे हो। हमारी प्रकृति ये कर रही है, इसके प्रति कॉन्शियस हो। तो वो कह रहे हैं ईच टाइम द पावर इंटरवीन्स, हम ये तुरंत ये काम करते हैं, हम में से एक नहीं चूक रहा, न मैं चूक रहा ना आप चूक रहे, हम में से एक नहीं चूक रहा इस चीज के अंदर। कवरिंग इतनी जबरदस्त है, अगर हम ये सोचने का प्रयास करें तो आश्चर्य होता है, यार हम कर कैसे रहे हैं ये बात। मैं कह रहा हूं और कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती, और कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। क्लोजली जब आप इस मार्ग में हो, साधना में, और आप उनके नजदीक हो, तब तो आपको सेंस आता है थोड़ा। अच्छा, समस्या ये है, आप पहला चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, ये क्या पढ़ो इसका, asserting itself and its ways। मैंने क्लोजली देखे हैं ऐसे एग्जांपल्स, इसलिए मैं लेटर्स की बात क्यों करूं, मैंने तो नजदीक से देखे हैं क्लोजली, और मैं एक एक की आपको और उस व्यक्ति से मिला सकता हूं, और वो प्रणम्य है, सामान्य व्यक्ति नहीं होते ये कोई से भी। जिनके सामान्य की तो बात ही क्या करें, जिन्होंने साधना अपनाई है और जो माँ के लिए अपना सारा समय माँ को ही दे रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा। कि लाखों में एक व्यक्ति ऐसा मिलता है, वैसे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। आप नजदीक हो तो मैं आपको उनके लक्षण दिखा सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हो ये कि माँ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कोई वहां रह के, asserting itself and its ways, traducing the ashram, आश्रम को, and impairing the respect due to the mother and spoiling my work as much as possible। ये तो लिखित में है भाई। पहले तो आप ऑफेंडेड मेरी बात से तो हो सकते थे, इसमें तो अब आप ये कहो कि ये क्या कह रहे हैं, ये मेरे को और माँ के कार्य को हमको नीचा दिखा रहे हैं, जितना हो सके हमारे कार्य को नुकसान, स्पॉइल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लो साहब सामने, इट कैन नॉट रियली सक्सीड इन दिस, हो तो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, बट इट कैन गिव ट्रबल एंड आई डू नॉट सी व्हाई आई शुड टॉलरेट इट। इफ शी was not conscious of what she was doing or the evil force that used her, the sooner she becomes conscious, the better। Arrogance, violence, and self-assertion have always been the bane of X's character। ये अभिशाप रहे हैं, arrogance, violence, self-assertion। और किसी को ये न मान बैठना चाहिए कि मेरे अंदर नहीं है। आपके अगर कोई थोड़ा सा बेंट थोड़ा दूसरा है, रहती तो वही चीजें, असंभव है। मैं कह रहा हूं क्लोजली देखोगे तो पता चलेगा, क्लोजली देखो उनको। पर ये वाले दृष्टिकोण जब साधना लोगे तो ही आ सकता है, नहीं रीड कर ही नहीं सकते। आप साधकों की पुस्तकें पढ़ोगे, वो अच्छी बातें करेंगे, सच्ची बातें करेंगे, इंस्पायरिंग बातें करेंगे, पर बिहाइंड द लाइंस आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि इसके साथ साथ जब आपने साधना अपनाई होगी, लंबे रूप से चल चुके होंगे, तो आप जानेंगे ये व्यक्ति क्या कह रहा है। एक पार्ट है प्योर कह रहा है,
दूसरा पार्ट इसलिए इसके साथ शामिल होके आ रहा है, आप समझ जाएंगे। बट इन हर रिलेशंस विद द मदर दीज थिंग्स मस्ट गो। शी मस्ट लर्न नॉट टू फोर्स हर विल ऑन द मदर but to accept the mother's will in everything without opposition और मरमर। हम करते हैं ये सारे टाइम। प्रार्थना जहाँ कन्वीनियंट होती है वहां सो कॉल्ड प्रार्थना करते हैं, एक नहीं करता हम में से। निकलती तो है क्या, जानते तो हो क्या प्रार्थना होती क्या है? मैं तो कह रहा हूँ लिख के देखो, पता चल जाएगा। ओरिजिनल प्रार्थना तो है क्या? दैट इज द मेन पॉइंट। नहीं तो मरमरिंग चलती रहती। मरमर क्या, साफ साफ कह रहे हैं हम तो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे क्या, अरे भाई इसका तैयारी नहीं है, इसकी तैयारी चल रही है। अरे तो कभी तो होगी, लकड़ियों में जाने पे होगी तैयारी यार। 80 साल का हो गया, 75 का हो गया, कभी तो होगी। तैयारी चल रही है। आप फॉल्सिटी ऑफ योर रीजनिंग है, जस्टिफिकेशन से उनकी फॉल्सिटी तो देखो। ये तो अभी तो हम इसमें असमंजस में है। साधना अपनाएं। क्या माँ रिलायबल है? क्या माँ हमारा भरण पोषण कर देगी? परिवार तो कर देगा, ब्लड रिलेशंस तो कर देंगे, समाज तो कर देगा। माँ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? पता नहीं। मैं जाऊं, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा? आप कहते इस तरीके से तो नहीं सोचा, क्योंकि आपकी प्रकृति सीरियस है ही नहीं इस बारे में, इसलिए वो प्रश्न उठेंगे ही क्यों? बैग पैक करो और फिर जो जो चीजें उठती है तब आएंगी। इफ शी डज नॉट टेक दिस रिजोल्व, शी विल ऑलवेज गो ऑन एज शी हैज डन एंड रिलैप्स इनटू रिवोल्ट्स, एंड दैट विल ब्रिंग नो गुड टू हर। In short, however difficult it may be to her nature, she must learn self-surrender to the divine. और ये हर की बात नहीं है, ये जिन्होंने भी साधना अपनाई है उसमें से हर एक की बात है। हर एक की बात है इसमें। दिलीप कुमार रॉय की अपनी बात है। अब इन्होंने पत्र जो लिखा, कृष्ण प्रेम के अंदर ये बातें नजर नहीं आती। उन्होंने गुरु को दिया, अपनी तरफ टर्न बैक नहीं करते वो। पर उन्होंने एक पत्र के अंदर वो लिखते हैं कि यार तेरे अंदर तो ये विद्रोह की भावना उठती है, दिलीप कुमार रॉय को कहा, मेरे अंदर इस तरीके से नहीं आती। मतलब कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, पर मैं मेरे अंदर एक इस तरीके की मेरे शील्ड आ जाती है एक सामने। वो बस इधर नहीं। जीवन आपको कई चीज सिखाता है। इससे मैंने व्यवहार किया, उस व्यक्ति से उसके साथ क्या व्यवहार रहा क्या नहीं रहा, आप फ्रेश नहीं रह पाते। एक शील्ड आ जाती है बीच के अंदर। आपको क्या पता, आपको व्यक्ति दिखता है, इवेंट दिखता है, घटनाएं दिखती है, जगत दिखता है, समाज दिखता है, उसके नियम दिखते हैं। आपको जगदम्बा की क्रिया नहीं नजर नहीं आती। कैसे फ्रेश रहो कि भी आपकी जिससे अभी खूब लड़ाई हुई है, जिसने आपको धोखा दिया है, ये वो, क्या जिंदगी में फिर अनुभव आपको क्या करें उसका? अच्छे बुरे अनुभवों को कहाँ रखो, बेवकूफ बन जाओ, जीवन को जियो किस तरीके से? बड़े प्रश्न है ये। फ्रेश रहने का क्या मतलब है कि बार बार धोखा खाते रहो, या फिर उस समझदारी के ऊपर विश्वास करके काम करो, या मां नजर नहीं आए? ये सारे प्रश्न हैं जो गहरे प्रश्न हैं। साधना नहीं कर रहे इसलिए अभी कोई इश्यू नहीं है इनका भाई। इसलिए जो भी हम कर लेते हैं वो एक तरीके का बोनस है। अभी जो भी हमने पढ़ लिया वो भी जीवन में बोनस है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि आधार चेंज नहीं हुआ। अभी आपका सामान्य आधार है, वो फंडामेंटल शिफ्ट आया नहीं, इसलिए कुछ भी कर रहे हो तो बोनस है। पढ़ लोगे तो भी अच्छा है, माँ का ध्यान कर लोगे तो भी अच्छा है। जीवन का चौकटा तो वो का वो है। इसलिए आपको लगता है मैं ये भी कर रहा हूं तो एक्स्ट्राज में है वो, इसलिए है। इन शॉर्ट, हाउएवर डिफिकल्ट it may be to her nature, she must learn self surrender to the divine. A bhakti which claims everything from the divine and does not give itself is not real bhakti. क्लेम ही क्लेम कर रही है ये, देती नहीं है। और जबकि अगले को ये लग रहा होगा उसकी नेचर के अंदर कि मेरी भक्ति सही है। ये कैसे हो सकता है बिना कन्विक्शन? अगर आपके कन्विक्शन नहीं हो तो एक लेवल से ज्यादा हॉस्टिलिटी में जा नहीं सकते आप। कन्विक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं ठीक चल रहा हूं, मेरे को जो नजर आ रहा है वो ठीक नजर आ रहा है। अगर आपको ये कन्विक्शन न हो तो मतलब डाउट अगर आ गया कि यार मैं ठीक चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, तब तो माँ की कृपा को कार्य करने का स्थान मिल जाएगा। आप इसमें कन्विंस्ड हो
ये जो व्यक्ति जो लिख रहा है वो कन्विंस्ड है, वो तो भक्ति भी रख रहा होगा, श्री अरबिंदो को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, आश्रम के कार्य को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक लेटर नहीं, बहुत लेटर हैं। तो जगह जगह श्री अरबिंदो और माँ ये कह रहे हैं, अरे दर्शन का टाइम है, लोग आ रहे हैं। सबके ये थी कि आश्रम की बुराइयां करें, आश्रम की कमियां सामने लेके आए। ये एक एक इंस्टिंक्टिवली वो कर रहे थे। ये साधकों की बातें हैं, ये जो रह रहे थे वही कर रहे थे इंस्टिंक्टिवली। जो नहीं कर रहा था, जो अपने आप को समझदार बता रहा था, वो दूसरे तरीके से कर रहा था। किसी ने अपनी दुकान खोल रखी थी, जी ये बहुत बड़े पंडित जी हैं, ये थोड़े से ये वाले हैं, ये माँ के भक्त हैं, ये तो माँ के शेर हैं, ये माँ के पार्षद हैं, ये वाले ये हैं। उनके दूसरे एजेंडाज थे, वो एडवांस साधक थे। इसलिए माँ और श्री अरविंद ने ये एक कोटेशन फ्लोट किया, ये एक मैसेज कि डू नॉट लिसन और गिव ईयर्स टू स्पेशली दोज हु आर सो कॉल्ड एडवांस साधक्स। जो सो कॉल्ड एडवांस साधक है उनकी तो कम से कम मत सुनना। ये फ्लोट करना पड़ा उनको। जिनकी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तब आप ये बताओ, रखो कहाँ अपने आप को, कहाँ थोड़ा सा, कहाँ विश्वास रखो अपना, हम कहाँ हैं। I point out some details. There should be no more clamoring and shouting and violent insistence when something happens which she does not like. डाइनिंग हॉल में माँ ने कोई रूल बनाया, इसमें शोरगुल करना शुरू कर दिया। दर्शन से संबंधित कोई रूल बनाया, उसको लेके श्री अरबिंदो को मिलना जुलना, ये वो, अगर कोई वो एक कम्युनिटी कैसे चले उसके संबंध में कोई भी बात करेगी, ये लेडी तो हो अल्लाह करेगी। बात लेडी की रूस की नहीं है, ये तो एक कॉमन सी बात है। देयर शुड बी नो डिसरेस्पेक्ट। मन में रखना नहीं, ये तो कह रहे हैं सामने साफ साफ एग्रेसिवनेस और कांस्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन व्हेन शी स्पीक्स टू द मदर। जब मां से बात करे तो डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये कल्पना कर सकते हो क्या आप, ये जगदम्बा के सामने कोई बैठा है, ये बातें बातें हैं, ये हम जो सोचते हैं ऐसा होता है। ये तो श्री अरबिंदो लिख रहे हैं, होता क्या, अब इसमें कल्पना थोड़ी बाकी रहती है। आपके तो ऐसा कैसे, ये लिखा हुआ है ना। आप इसी पुस्तक को 32वें वॉल्यूम को पढ़ लो, सेंस आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। कौन से सरेंडर, रिजेक्शन, एस्पिरेशन, किसकी बातें कर रहे हो? कौन सा, कौन सी चिड़िया है ये? नजदीक से देखोगे पता चल जाएगा। एग्जिस्ट तो करती है क्या ये? होती तो है क्या ये? मैं अच्छे बलों की बात कर रहा हूं। ये पत्र आपको आपके सेंसेस में ला देंगे। आप ये बोलने से पहले थोड़ा सा एक बार ठिठक के बोलेंगे, यार क्या बोल रहे हैं। आप बोलना बंद कर देंगे क्योंकि सेंस आ जाएगा कि बोल क्या रहे हैं हम। लोग आध्यात्मिकता को डिफाइन कर रहे थे यहाँ बैठ के, ये आध्यात्मिकता। और आपने वो समय भी देखा है, साइकिक की बात कर रहे थे, आध्यात्मिकता की बात कर रहे थे। मैंने कहा, कमाल कर दिया ये तो। और अब धीरे धीरे आप कारण समझ रहे हैं, ये देखिए। इफ शी हैज एनीथिंग टू रिप्रेजेंट शी कैन डू इट क्वाइटली एंड विदाउट वायलेंस, बिना वायलेंस के। एंड शी मस्ट एक्सेप्ट द मदर्स डिसीजन इन ऑल मैटर्स। शी शुड रिस्पेक्ट द मदर्स टाइम and the heavy work she has to do. She has been allowed to see the mother very often in the days, but she must not abuse the privilege by wasting unnecessarily the mother's time. उसको माँ से मिलने की ये प्रिविलेज दी गई है, उसका उपयोग हमारे साधक भाई क्या कर रहे हैं, ये देखो। ये हम हैं ये। आप दूसरे को क्यों देखते हो? हम हैं ये। There is a heavy strain on the mother, allowing her no time to rest, and she must not increase the strain. मेरे को तो रात को 2 बजे पेट में दर्द हुआ, माँ को पुकारा, कुछ हुआ नहीं। अब बताओ, अब हम कहाँ जाएं बेचारे साधक? क्योंकि माँ 24 घंटे प्रहरी बन के बैठे रहो, आपके पेट दर्द ठीक करती रहो। हमने तो माँ को पुकारा संकट के अंदर। माँ कितनी फ्री बैठी है जगत में, कोई भी बुला लो उसको, कोई भी, और ये कहने कोई तैयार नहीं कि माँ मेरी ये चिंता छोड़, मेरे को तो काम बता। नहीं, माँ ने ऐसा कुत्ता पाल लिया, हर 2 मिनट बाद उसके खुजली करो कान के अंदर। हम और क्या हैं? हम वास्तव में क्या हैं? हम उससे भी खराब है। 2-2 मिनट नहीं, हम तो, मेरे को तो माँ की गोद चाहिए, मेरे को तो माँ का प्रेम चाहिए। माँ, मैं माँ का हो जाऊं, नहीं मैं माँ को कैसे निगल जाऊं, खा जाऊं मैं माँ को। वाइटल तो यही चाहती है।
साइकिक की तो कोई बात है नहीं, कहना कितना अच्छा लगता है कि शब्द बहुत अच्छा है। अब हमारे सामने है, अब देखो, इन हर अपस्टेयर्स वर्क शी शुड ट्राई टू बी इन हार्मनी विथ अदर्स। इसको ऊपर जो माँ का रूम है, आप सबने तो देखा है, वहाँ का कोई इसको डेकोरेशन का या जो भी काम दिया होगा, श्री अरबिंदो के रूम का या और अपस्टेयर्स जो माँ का और ऊपर का रूम है, एक तो श्री अरबिंदो के जो एडजेसेंट है, एक उससे ऊपर माँ का रूम है। उनमें से किसी का इसको काम या दोनों का या जो भी, इन हर अपस्टेयर्स वर्क शी शुड ट्राई टू बी इन हार्मनी विथ अदर्स एंड नॉट ए कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस और इनकन्वीनियंस। वहां जाके भी ये व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है। शी शुड नॉट पुश हरसेल्फ एवरीवेयर एंड टेक अप ए पोजीशन नॉट ऑथोराइज्ड बाय द मदर। ऐसी पोजीशन ले ले, नहीं ये चेयर ऐसे रखो, मैंने कहा ना ये फूल ऐसे जचाओ, मेरे को माँ की प्रेरणा है। भाई कैसे तो करती होगी ये जाके, माँ का काम करते करते भी, नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, वो ऐसे ही होना चाहिए। आपने तो देखा होगा वहां का किस तरीके से, वहां क्या प्रेस करता होगा व्यक्ति, क्या किस तरीके से करता होगा। अब वो जो भी है, ये कार्य इसको दिया गया था, इसमें जाके भी वायलेंटली नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही होना चाहिए। आई एम रेफरिंग स्पेशली टू हर इंटरफियरेंस अबाउट द स्टेयर्स व्हेन द मदर इज गिविंग प्रणाम टू द साधक्स। तो सीढ़ियों के अंदर बीच में खड़ी हो जाती होगी या कुछ न कुछ करती होगी ये। तो इस साधक को जब माँ, जो ये फोटोज कुछ हैं जो ऊपर से माँ उतर रही है, सीढ़ियों के ऊपर माँ की फोटो है, जो भी कोई रेफरेंस रहा होगा उसके अंदर अब ये क्या कर रही है, आई एम रेफरिंग स्पेशली, और घटनाओं में ये स्पेसिफिकली मैं ये बात कह रहा हूं, टू द हर इंटरफियरेंस, माँ के दर्शन देने के अंदर, गिविंग प्रणाम टू द साधक्स, उसके अंदर भी हस्तक्षेप कर रही है ये। टू इंटरवीन, स्पीक टू पीपल एंड गिव देम इंस्ट्रक्शंस इज नॉट इन हर प्रोविंस। चलो इधर खड़े हो, चलो तू सामने आ जा, ये फूल इधर रखो। बॉस बन गई होगी, जैसे आप कोई ऑफिस में जाते हो, एक पियोन जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, प्रधानमंत्री से ऊपर तो वही हो जाता है जो गेट के बाहर खड़ा होता है। ये हो गया होगा, मैं माँ का प्रहरी हूं, मेरे से बिना तुम कैसे माँ के पास जा सकते हो, जो भी इसके दिमाग में फितूर रहा होगा। ये तो ईमानदारी से माँ की सेवा कर रही थी अपने मन में, ये तो अच्छा उस जगह हम नहीं खड़े, नहीं हम में से एक चूके नहीं इस काम से। माँ तो मेरी विशेष है, माँ मेरा ये है, मेरी फिजिकल माँ है, ये मेरा ये वाली माँ है। ये आपका 18वां वॉल्यूम जो है उसमें एक जना, ये सारे ही वॉल्यूम खैर, पर जो 18वां आया है, 20वां मैंने बताया आपको, 19वां है, एक एक से आप देखो तो सही। ऐसे विचित्र विचित्र आत्माएं जो थी मिली हैं हमको, माँ श्री अरविंद को, कमाल। कौन से सरेंडर की, मैंने तो क्लोजली देखा है, ये मेरे को तो इस तरीके से तो नजर नहीं आता। जो हम ये कह रहे हैं एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, ये उनकी बातें चल रही है जिन्होंने अपने आप को माँ को दिया है, जिनके और कोई मन में दूसरा विचार कहने को तो नहीं है, उनकी बातें हैं ये। इन हर टॉक विद साधक्स एंड विजिटर्स शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम गॉसिप ऑफ ए बैड काइंड। मतलब ये सारे लेवल पे गंदगी फैला रही है ये औरत, और ये खाली अकेली नहीं है, और सारों की भी लगभग स्थिति यही है। कुछ थोड़े से सेंसिबल हैं, वो आउटराइट इन शब्दों में नहीं बोलते, घुमा फिरा के बोलते हैं, अपने आप को बड़ा साधक बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे भी कहते हैं, अरे वाह ये तो बहुत ऊंचा साधक है, इसने तो इतनी पुस्तकें लिखी है, माँ ने इसको इतने इंटरव्यू दिए हैं, इसने ये किया, इसने वो किया है, ये किया। ये लो सर, क्लोजली देखोगे तो आपको इसकी बारीकियां पता चलेगी। ऐसे जो श्री अरबिंदो का ये पैसेज है, कुछ नहीं समझ में आ सकता, वहम के अलावा कुछ भी संभव ही नहीं है कि वहम के अलावा कुछ पैदा हो जाए। गॉसिप ऑफ ए बैड काइंड और ड्रॉइंग ए ब्लैक पिक्चर ऑफ द आश्रम, ग्रे नीका, ब्लैक, आश्रम के बारे में बुरी चीजें, जिनमें ये चीजें हैं। आप देखो यहाँ की पिक्चर आपके सामने जाके तुरंत किस तरीके की, आप इससे ये जान जाओ कि उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी है। कुछ लोग जो आपको ऐसे ही स्थानों की ब्लैक पिक्चर ले जाके देते हैं कि ये तो ये है, ये तो ये है, तुरंत जान जाओ कि उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ब्लैक चीज उस व्यक्ति के अंदर है।
ये जीवन की विशेष बातें हैं कि कैसे इवैल्यूएट करें, किस व्यक्ति को कहाँ रखें। ये मैं इससे ज़्यादा तो आपको नहीं कह सकता, अगर मेरे नज़दीक होगे मैं आपको बहुत चीज़ें बता सकता हूँ। Joined or makes a bad impression on those who have joined recently and have had no personal experience of how things are, and on people from outside. There should be no attacks on the mother or accusations against her. All that is harmful to my work, and I want it to change. उसको आश्रम में रहने की जगह भी है, खाना भी है, पीना भी है, प्रेम से दर्शन वर्शन भी है, लेटर्स भी है, जवाब भी है, सारी चीजें हैं। दैट इज इनफ फॉर द प्रेजेंट। वर्तमान के लिए इतना पर्याप्त होगा। बट इट इज ए होलसेल चेंज इन हर एटीट्यूड एंड कंडक्ट दैट आई डिमांड ऑफ हर, if she is prepared to make a firm resolution to get rid of these habits and keeps to the resolution, all will be well. If she is not prepared, then why she is here? And what is the meaning of her professed bhakti for myself or for the mother? वो तो अगर मेरी तो भक्ति है, प्रोफेस्ड भक्ति, प्रोफेस कर रही है इस बात को। हम तो प्रोफेस भी नहीं कर रहे, वो तो प्रोफेस कर रही है। Explain all this carefully to X. It may be best to make a translation of this letter and give it to her to keep with her. कोई दूसरी भाषा की रही होगी, जिसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, जिस भी भाषा की ये रही। ये एक लेटर हुआ। ये कुछ-कुछ तो आँखें खोलता होगा मेरे ख्याल से। क्यों देविका जी, कुछ खोलता है क्या आँखें? हाँ जी। क्या विचार आता है? शुरू में तो ये लग रहा था कि मैं इससे रिलेटेड नहीं हूँ, मैं अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रही थी। बट एंड में जब आराम से पढ़ते-पढ़ते ये लगा कि वाइटल इंसिस्टेंसेस तो पूरी तरह से ही है, और ये नहीं देखा कि माँ क्या चाहती है, ये देख रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। बस। और वही सब बातें चल रही थी कि भई एक बात चल रही थी, उसको दूसरी बात काउंटर कर रही थी, यही सब चल रहा था साथ-साथ में। कि बिल्कुल। अगर हम मानेंगे तो सब अपने भगवान, माँ हमारी मदर ही है, हुँ, फिजिकल बायोलॉजिकल मदर ही है, हुँ, बिल्कुल है, कोई उसमें नहीं है शक। बट हुँ, हम कर क्या रहे हैं कि उस चक्कर के अंदर हम लोग सिर्फ वो नहीं देख रहे कि वो क्या चाह रही है, हुँ, और उनके अकॉर्डिंग बनना। हमारी हाँ। मदर वो हमारी बात माने और हमारे अकॉर्डिंग चले। और उसमें आनंद आना फिर बाद में। हाँ मतलब जी, साधना का विशेष बात ये है, वो क्या चाहती है, उसकी चाह को अपनी चाह, अपन आप हो ही नहीं ना, और उसमें आनंद आना इसलिए नहीं। मिनिमम तो ये है कि भई पहले तो ये प्रश्न करना, ये तो बहुत बड़ी स्थिति की आपको इंडिकेट करता है कि आपकी स्थिति में शिफ्ट आया है। फिर उसके आनंद में अपने आनंद महसूस करना, अरे वाह! कृपा हो गई। ये मिलती नहीं ये बात, किन्हीं क्षणों पे तो हो जाती होगी। पर जब आपका फ्रेमवर्क क्वेश्चन में आता है, आपका सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी क्वेश्चन में आता है, ओहो! ये क्या किया? माँ ने उसको प्रॉमिस कर दिया था, मैं इतनी बजे मिलूँगी। माँ को याद भी दिलाया गया, माँ ने कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं। अरे! ये फिर बाद में विश्वास किस पे टेकोगे आप? क्योंकि आपके सेंस ऑफ एथिक्स, सेंस ऑफ ट्रुथ, सेंस ऑफ राइट, ये जब ऑफेंडेड होते हैं, तब कि ये कौन-सी माँ हुई? ये क्या माँ है? किसको दिया हमने? समस्या बहुत ज़्यादा मूलभूत है, जड़ में है। अभी हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि पत्ता कहाँ है, तना कहाँ है, पेड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है, कुछ नहीं पता अभी हमको। इसलिए जो है उसके अंदर कुछ पुकार, थोड़ा बहुत इमोशन उठ जाता है, उसको हम भावना कह देते हैं, ये कह देते हैं, वो कह देते हैं। समस्या फंडामेंटल है। इससे कुछ तो आइडिया लग रहा है ना आपको? हाँ जी, कितना ज़्यादा रिवीलिंग है ये। वो व्यक्ति आप कह दो कितना फालतू आदमी है, अरे फालतू नहीं है, हम हैं ये। आदमी क्या है? हम हैं ये। ये एक लेटर, 2-4 और दे देता हूँ मैं, थोड़ा-सा हमको कुछ एक सेंस आ जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये अब आप आ जाओ 399।
द मदर एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स, 399 इसी किताब का। पहले तो मैं इसी किताब से दे देता हूं। X said in class that one should not have a desire to possess anything, but if something comes, one can accept it. For example, if somebody offers you a sweetmeat, कोई मिठाई, you can eat it. How can such a rule stand? Supposing someone comes and offers you meat or wine, can you accept it? Obviously not. 100 other instances could be given where the rule would not stand. What the mother gives or allows you, you can take. डिजायर्स, ये तो उस व्यक्ति, मतलब ये अगर रूल बना लेते हो आप, कैसे प्रवेश करती हैं चीजें आपके अंदर, धीरे से आ जाएगी कि आपके अंदर डिजायर नहीं होनी चाहिए, निष्काम हो आप, तो जो भी आता है वो तो माँ की ही इच्छा से आता है। अब ये रूल आपको कहां लेके चला जाएगा, देख लो। My belief is that one should not accept anything except what the mother gives or permits. When one is attacked by an impulse and sees it rise up, one should let it spread as far as it wants and then tell the mother to transmute it. If you do that, the impulse may spread so far as to take hold of you and master you. आपको वो impulse निगल जाएगी। If a wrong impulse comes, you must reject it as soon as you become aware of it. आपके किस तरीके से चीजें आके धीरे से, ये जो व्यक्ति कह रहा है, कितनी निरापद सी बात लगती है, हार्मलेस सी बात लगती है कि भी ठीक है, जो विचार आए पड़े रहने दो, और फिर बाद में माँ को कह दो, ले माँ इसको ट्रांसम्यूट कर दे। ये तब की है जब श्री अरबिंदो मौजूद हैं। ये उत्तर तो श्री अरबिंदो के 33 के अंदर दे रहे हैं, इसके बहुत लंबे समय, तो साधक भी कोई, हर कोई तो था नहीं उस समय। भाई 33 की ये बात है, तो आप देखो। If our desires are to be rejected, why does mother sometimes satisfy them? It is you who have to get rid of them. If the mother does not satisfy them and the sadhak keeps them, they will only get stronger by suppression from outside. Each one has to deal with them from within. अब अपन आते हैं 404। ये कुछ कुछ आइडियाज इससे आते हैं अपने को। I went to the market with X since he wanted to buy a wristwatch. मतलब जो ट्रिवियल सी चीजें हैं वो भी उदाहरण देखो आप। 404 है ये, पेज 404। He bought one on credit and promised to send the amount to me within 4 days after reaching Madras. साधक है, वो किसी व्यक्ति के साथ चला गया और उसको उधार के अंदर घड़ी दिला दी, और वो कह रहा है कि मैं मद्रास पहुंचूंगा तो तेरे को पैसे वापस दे दूंगा। As he did not send the money, I borrowed the necessary amount from Y and paid the shop owner. I have sent a reminder to X, but in future I shall not have such money transactions with him. एक आइडिया आ रहा है इससे। आप कह रहे यार घड़ी भी मैं नहीं दिला सकता, आश्रम में आ गया कोई व्यक्ति घड़ी जैसी, और क्या उसकी, आज तो की बहुत महंगी महंगी आती हैं, सामान्य कोई घड़ी दिलाई होगी। Yes, mother not only disapproves of sadhaks running into debt, but she does not like either their being responsible for or having to pay for the debts of others. इसको धीरे से अप्लाई करके देखना, इसके क्या क्या अर्थ निकलते हैं, साइकोलॉजिकली क्या अर्थ निकलते हैं। आपका ये कोई इश्यू है क्या यार, मैंने दे दिए ना 1000 रुपए, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को जो प्रोस्पेरिटी मिल रही थी वो चद्दर तेरे को दे दी, मेरे को जो ये मिला था मैं नहीं काम में लेऊंगा। अरे भाई तेरे लिए। Mother does not approve of your writing the book. What she does not like in your being so lost in it that you can do nothing else. You must be master of what you do. अब ये किताब लिखने में मशगूल है, and not possessed by it. ये सरेंडर वरेंडर बातें हैं खाली, ये नहीं हो सकती। आपके इंक्लिनेशन है वही इतने भारी होते हैं, कहाँ पता ही नहीं होता भाई। She quite agrees to your finishing and offering the book on your birthday if that can be done. But you must not be carried away. You must keep your full contact with higher things.
इसको तो लग ही रहा होगा कि मैं ये माँ को बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा। भावना को आहत कर दिया माँ ने। श्री अरबिंदो उसकी भावना को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। ये कौन से गुरु हैं? इन आस्किंग फॉर एन इजी चेयर, I did not mean that I plan to do an easy chair साधना। व्यक्ति कह रहा है अभी आराम कुर्सी देने से, अब बताओ इसी में आपकी इशू आ रही। I asked because at present the pressures of sadhana are so strong and fiery। एकदम जला देते हैं मेरे को, तो गर्मी लगती है मेरे को, तो आजकल ये साधना बहुत तेजी से ऊपर से उतर रही है, मेरा सिर फटे जा रहा है। साधना का प्रभाव है साहब, मैं बहुत गहरा सा गंभीर साधक हूं मैं। और दूसरों को कहता भी होगा ये, दूसरों को बताता तो होगा ही मैं कितना जबरदस्त साधक हूं। that I am made to sit for hours continuously and my head becomes so heavy। आ गई ना कि सिर बहुत भारी बन जाता है। Please tell me what to do। तो in asking for an easy chair I did not mean that I plan to do an easy chair साधना। लिखा होगा कुछ ने विशेष सुंदर सुंदर बातें लिखी होंगी कोई श्री अरबिंदो को, इसने माँ को लिखी होंगी कि भाई मैं तो साधक बन गया, आपकी ही कृपा उतरती है। वो उतरती है तो शरीर, और पढ़ लिया उसने कि आधार कमजोर होता है, उसमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हम लोग अगर श्री अरबिंदो, ये तो बढ़िया हमने पढ़ा नहीं है। आप में से किसी ने लेटर्स भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा है सच, ये अच्छी बात है वैसे तो। पढ़ लोगे तो और गड़बड़ी हो जाएगी। पढ़ लो तो गड़बड़ी है, नहीं पढ़ो तो भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी तो गड़बड़ी ही है बस, मतलब वो वैसी ही रहेगी। आपको यार करें क्या, मतलब आप तो परेशान करते हो बिठा बिठा के यहाँ पे। मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट दिखा रहा हूँ जो बहुत रिच है। वो ऐसे क्यों मिल जानी चाहिए। What the mother meant was that this meditating on an easy chair, which is so common in the ashram, आश्रम में ये ट्रेंड सा चल गया। देखो आप, एस्पिरेशन सरेंडर रिजेक्शन, लो साहब ये लो इजी चेयर का। एक बार माँ ने बिल्ली पाली, आश्रम में 25-25 बिल्लियों का ट्रेंड हो गया। माँ ने कहा भी इनफ हो गया, ये तो मैंने किसी एक्सपेरिमेंट से पाली, यहाँ 25 बिल्लियां हैं, अभी तक भी थी, अभी भी हैं। माँ ने पाली, अरे तो माँ ने तो और बहुत काम किए थे, इनको बिल्ली ही जचती है। अब बताओ, वो बैठ के माँ की तरीके से बैठते हैं, बिल्ली को भी बिठाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी एयर चारों तरफ रखेंगे, मैं साधक हूं, मैं ये हूं। आप ये आश्चर्य कर रहे थे ये कैसे होता है, मैं आश्चर्य कर रहा हूं, दूसरी बात दिखती नहीं। ये क्लोजली जब आप जीवन को देखते हो, पर वो देखोगे कैसे, जब आप स्वयं जीवन अपनाओगे तो देखोगे। अभी आप जी थोड़ी रहे हो, अब तो है बस स्थितियां आपको लेके चल रही हैं, बहा रही हैं अपने तरीके से, कुछ विचार, कुछ ब्लड रिलेशंस, कुछ ये कुछ वो। इसमें जरूरी है आपका सेंस ऑफ वोल्यूशन, कि मेरे को स्वतंत्र इच्छा है, नहीं तो जी नहीं पाओगे। जी कैसे पाओगे अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए, तो वो आपको फिल्टर लगा रखा आपकी सेफ्टी के लिए, बढ़िया है जी के चले जाते हो। तो ये न्यू थिंग टू हर एंड शी फाइंड्स इट ए रादर तामसिक हैबिट। देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू ए लॉन्ग सिटिंग और रेस्टिंग व्हेन यू नीड इट। फिर 405 से, अब ये और जोरदार बात है, इमिटेशन ऑफ ग्रेट साधक्स। इन्होंने अपने आप को कि ये ग्रेट साधक हो गए साहब आश्रम के, ये श्री अरबिंदो लिख रहे हैं। तो उस समय कौन रहे होंगे भाई, ये तो ईयर देख लो ना इसका, 34, ये पुरानी बातें हैं। और उस समय आपकी जो ये पुस्तक मिलती है कई लोगों की, जो आप पढ़ते हो, बढ़िया है, इसमें नाम नहीं छापा तो हमारी भक्ति बरकरार है उनके प्रति। ये तो नाम नहीं दिया, एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, वो ठीक है। पहले जो लेटर्स छपे तो उसमें कृष्ण प्रेम का भी नाम नहीं लिखा था। अभी जहां कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई पर्सनल कोई ऐसे एल्यूजन नहीं है, वहां अब नाम दे दिया अब कृष्ण प्रेम का और का इन लेटर्स के अंदर। जो ये CW ऐसे छपा है, ऐसे BCL में नहीं था। ऐसे BCL में तो वहां भी डिस्क्रीट ही था कई चीजें, अब चेंज हो गया इसके अंदर, अगर आप कंपेयर करोगे तो। खैर जरूरी नहीं है आपके लिए, आप तो इसको देखो। इमिटेशन ऑफ ग्रेट साधक्स, ऑब्जर्विंग एक्सेस रीसेंट कंडक्ट, आई हैव लॉस्ट हाफ माई रेस्पेक्ट फॉर हिम। मैंने उनका कंडक्ट देख के
अरे आश्रम में भी यही चीज। ओहो बताओ, ये मेरे से तो कहते हैं कि आपको यहाँ आयरनिंग की फैसिलिटी देते हैं, फिर नहीं देते, ये है ये मेरा रेस्पेक्ट उस व्यक्ति के लिए चला गया, जो भी जिस भी कारण से। ये मेरा जो है ना, I have lost half my respect for him. And when I observe other things done by him, it is all the more so. पहले मेरा चंपक लाल जी के लिए बहुत डीप रेस्पेक्ट था, अब मेरा नहीं है, या मेरा जिसके लिए भी एक्स वाई जेड जो भी है। People will not follow a hard working sadhak like Y or Z. They see what the well known great sadhaks do. When they see X speaking to the CID man as if he were his oldest friend, or keeping his own kitchen where he invites his relatives and friends. When they see A freely reading newspapers, going to hotels, and talking to anybody, they naturally feel justified in following their example. And when, in spite of their conduct, these men get inwardly or outwardly much more than others, I do not think people can be blamed for doing as they do. साथ साथ ये कितनी बातें ये कह रहा है, अगर आप साइकोलॉजिकली समझो कि इनको तो इनवर्डली और आउटवर्डली यहाँ बहुत अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, जबकि इनका कंडक्ट ऑब्जेक्शनेबल है। ये कह रहा है, आप इस बात को समझ रहे हो, इसमें कितनी कितनी सारी चीजें साथ में घुल के आ रही हैं। देविका जी, आप समझ पा रहे हो ये क्या कह रहा है? मुश्किल है थोड़ा सा, बाकी तो ये क्या कह रहा है, इनवर्डली और आउटवर्डली इसको चीजें मिल रही हैं यहाँ। अनुग्रह चीजें मतलब इनवर्डली, और तो क्या मिलेगा, आपकी कृपा भी मिल रही है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। आउटवर्डली भी इसको देखो, घर मिल गया, मकान मिल गया, किचन मिल गई, अलग से किचन दे दी जिसके अंदर दूसरे अपने घर के ऊपर बुला लेता है, तो वहां खुले तौर पे न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। पहली बात तो इसका क्या लेना देना, जो व्यक्ति लिख रहा है उसका क्या संबंध है इस बात से? अगर उसको कोई भी चीज मिली है वो मां श्री अरविंद ने दी है, उसका और उनका संबंध है, इसका तो कोई डायरेक्टली काम से तो कोई है ही नहीं। ये जो पहली बात लिख रहा है, आप देखो बार्गेनिंग की स्पिरिट देखो आप, वो व्यक्ति क्या कर रहा है वो तो सेकेंडरी बात है, पर इसके खाली क्या है कि दीज मैन गेट इनवर्डली एंड आउटवर्डली मच मोर देन अदर्स। आप कह रहे हो सरेंडर किसका? दिख रहा है इसको, दिलीप कुमार रॉय कृष्ण प्रेम को लिख रहे हैं, अरे मेरे गुरु मिल, कृष्ण प्रेम ने लिखा, गुरु की पर्सनल सेवा किया कर, पांव दबाया कर, उनका सर्विस किया कर, पानी भरना है, उनकी पर्सनल सेवा किया कर। उन्होंने कहा हमारे गुरु इस तरीके से नहीं करते। 3 4 5 लोगों को विशेष सुविधा मिली हुई है, वही लोग उनके, उन्हीं लोगों ने इवनिंग टॉक्स है, फिर बाद में आपके ये कुछ जो है ना निरोध बरन की और की, जो 4 5 लोग उनके साथ थे, चंपक लाल जी हैं, निरोध बरन हैं, और ये कुछ लोग जो जिन्होंने ये लिखा टॉक्स विद श्री अरबिंदो, इवनिंग टॉक्स, ये दिलीप मोरॉय को इस चीज से बड़ी ये थी। उनके लेटर्स इतने रिवीलिंग है, पर हम कुछ नहीं समझ सकते जब तक हम इस चीज को नहीं समझते। और ये सारी होने के बावजूद भी, मतलब ये सारे डिफेक्ट होने के बावजूद भी, वो आदमी थ्रू एंड थ्रू साइकिक, और दूसरे के अंदर प्रकृति का कोई डिफेक्ट नहीं हो, घोर रूप से फालतू आदमी हो सकता है। कैसी विचित्र बात है, आकलन कैसे करो जीवन के अंदर, ये पता ही नहीं चलता। 3 3.5 4 हजार लेटर एक जने को लिखे, खोद खोद के पूछता है वो तो आदमी, ऐसे ऐसे खराब खराब लेटर्स, जो आप सोच नहीं सकते कि ये साधना की गहनतम बातें इन लेटर्स के अंदर आ गई, खोद खोद के, खोद खोद के। आप देख तो एक प्रकृति ये, वहीं दूसरी प्रकृति कृष्ण प्रेम जैसी, जो उड़ते चलता है हवा के अंदर, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, एकदम दे देता है। और कोई जरूरी नहीं है कि इनको जो प्राप्ति हुई, दिलीप कुमार रॉय को कम प्राप्ति हुई और उनको ज्यादा प्राप्ति हुई ना। कैसी विचित्र बात है, अब ये कैसे बताया जाए, बहुत ही पता नहीं अब ये कैसे आकलन करे। इसलिए कहे पहले प्योरिफिकेशन हो जाना चाहिए, एस्पिरेशन रिजेक्शन, आपके बीइंग में रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। अब कृष्ण प्रेम के तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ही जिस तरीके का,
दिलीप कुमार बेचारा रिजेक्ट करे तो क्या करे, मतलब अब खुद को मार थोड़ी डाले, अब जैसा है वैसा है। तो विशेष बात कुछ और है। अब ये चीज कोई और के ऊपर आ गई, मतलब और एक डीप डाउन कोई सूत्र है, उसको टच कैसे करें। तो ये खाली प्योरिफिकेशन वगैरह की बातें, कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जो बातें कर रहे हैं उनको तो खैर इससे मतलब ही नहीं है। मैं कुछ आपको ये चीजें दे रहा हूं ये साधकों की। हु गेट्स, श्री अरबिंदो ने कहा कि कौन किसको ज्यादा प्राप्त होता है, ये कह रहा है उनको इनवर्डली आउटवर्डली मच मोर देन अदर्स। तो श्री अरबिंदो कह रहे हु गेट्स, किसको मिल रहा है, नाम तो बता जिसको ज्यादा मिल रहा है। हाउ डज ए गेट मोर देन अदर्स इनवर्डली, ए को ये इनवर्डली ज्यादा कैसे मिल रहा है भाई। एक्स डज नॉट गेट मोर, he receives more. If others had an equal receptivity, they would get as much as he, and some do get plentifully. ये बार्गेनिंग नहीं चल रही तो और क्या चल रही है। मेरे को, मैंने ये सरेंडर दिया, मैंने एस्पिरेशन दी, मैंने भक्ति दी, रिटर्न के अंदर एक्स को ज्यादा मिल गई, मेरे को तो नहीं मिल रही। अब आप बातें क्या कर रहे हो, ये लो सब, आप देखो तो सही क्या हो रहा है, और क्यों नहीं आ जाएगी हमारे दिमाग में ये बात। और अगेन, अब अगला फिर से कह रहा है, फिर से अगला आगे चल रहा है, क्या कह रहा है, इफ बी और सी प्रीफर नॉट टू कम टू द डाइनिंग रूम, व्हाई शुड अदर्स नॉट फॉलो देयर एग्जांपल। ये मैंने आपको पहले भी ये कुछ एग्जांपल दिए, पर अब एग्जैक्टली प्रिंटेड आ गए आपके सामने कि एक व्यक्ति को तो ये था कि भैया पहले आओगे, तेरे परिवार का व्यक्ति आएगा तो भी 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले बता देना किचन के अंदर कि ये आएगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। दूसरा व्यक्ति है 50 जनों को साथ में लिया आएगा, किचन का सारा काम क्लीन हो गया, बंद हो गया, तो भी दोबारा बनाओ, हमको कहने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो, कितनी पार्शियलिटी है ये, यहाँ तो कोई संवैधानिक कोई कोई ऐसी रूल लागू ही नहीं हो रहा। फिर बाद में धीरे धीरे कानाफूसी क्या, अरे पैसे देते हैं ये यहाँ नवजात जी की फैमिली ने पैसे दिए, फिर बाद में आपके ये हिम्मत सिंह का जी थे, उनको ये सुविधा थी, मदन लाल जी को ये सुविधा थी, उन्होंने बताया, भागलपुर के थे ये, तो उन्होंने कहा कि माँ ने ये कह रखा था, ये 50 आदमियों को भी लिया था, किचन बंद हो गई हो, तो कहा मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, खाना बना लेना, और जिसको लेके आए, किसी को भी लेके आए, उसको खाना खिला देना। अब मेरा कोई रिलेटिव आ रहा, मेरे माँ ही आ रही है, और बाहर का वो खाना नहीं चाहती या खा सकती नहीं, और माँ अगर सामने से ये कह दे, मैं कह रहा हूं मैं तो बचपन से आश्रम में हूँ, आश्रम एक समय का, और जो बचा था मेरे को दिखा, वो खाना पैक होके वहां फार्म हाउस पे गया है, जो बचा जितना भी खाना, वो सारा का सारा, भाई ऐसे तो नहीं हो सकता कि जितना खाना बनाया आपको क्या पता, विजिटर्स के हिसाब से आप हमेशा ही इतनी बड़ी संस्था में प्रोविजन लेके चलते हो, जहां 500 लोग भी खाते हो, 100 लोग भी खाते हो, आप कैसे कह सकते हो कि 2 का भी नहीं बचा। इसके अंदर व्यक्ति कहता है, यार मेरी माँ आई है, मेरा भाई आया, मेरा अंतरंग मित्र आया। जब श्री अरविंदो हैं और माँ हैं तो हर कोई तो आ नहीं सकता। व्यवस्थाएं सुविधाएं आज के तरीके की उस समय उतनी डेवलप हुई नहीं थी, गोलकुंड भी नहीं है या आपके, और गोलकुंड में हर किसी को रखते भी नहीं थे, और दूसरे जो गेस्ट हाउसेज हैं अंडर डेवलपमेंट या सारी चीजें थी, क्योंकि ये तो 34 की बात चल रही है। उस समय आश्रम कैसा था, क्या व्यवस्था थी, वो सारी को देखो आप। तो अगर बी और सी प्रीफर नहीं करते डाइनिंग हॉल में, जब मन चाहा तब नहीं आए, वो तो कह देंगे हम फुटबॉल खेल रहे थे, माँ के साथ ये कर रहे थे, माँ की कसीदाकारी कर रहे थे, माँ ने रोक रखा था, श्री अरबिंदो ने रोक रखा था, हम तो बाजार से ये सामान फूल लेने गए थे, समाधि वगैरह तो थी नहीं, समाधि किसकी बनाते, वो तो दोनों ही थे। आफ्टर ऑल द गीताज लाइन डज अप्लाई, यद यद आचरिति श्रेष्ठस तत्तत एव इतरो जनः। मतलब गीता के अंदर ये कहते हैं कि जैसे जैसे जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग आचरण करेंगे। इफ द वेल नोन ग्रेट साधक्स गो अबाउट लूजली, ग्रेट साधक जो हैं, अब ग्रेट साधक कौन कौन रहे होंगे, अब आपके मन में जो जो नाम आते हैं वो देखो,
The ordinary sadhaks have few good examples to go by. तो फिर तो बचते ही नहीं, ए फ्यू नहीं लिखा, है फ्यू गुड एग्जाम्पल्स, मतलब एक नहीं बचता, ए लिटिल, ए फ्यू नहीं लिखा, फ्यू. द मदर हैज नेवर सेट अप ए, सी और एक्स एज ग्रेट sadhaks and examples for others to follow. If people do it, it is their own error and their own responsibility. Even B cannot be imitated in everything, though he is certainly a very good sadhak. Great नहीं, आप एक एक शब्द पे बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिए. श्री अरबिंदो, हम कितना भी इसमें गंभीरता से देखें, हम इनफ उसके अंदर नहीं जा सकते. But his not going outside the central compound has been sanctioned by the mother from early times. आश्रम ही रहता होगा because it was his spiritual need. X's one merit as a sadhak is that he is entirely passive to the mother and receives without question all she gives him. As for his separate kitchen, that is mother's arrangement for him, not his own. तूने जो ऑब्जेक्शन उठाया उसको तो किचन दे रखी है, माँ की अरेंजमेंट है, उसने स्वयं ने नहीं करी है. द फ्रेंड्स whom he receives there are people who have great devotion for the mother or are seeking for light. भाई आज हम क्लास यहाँ कर रहे हैं, आप लोग मेरे संपर्क से हैं, आप यहाँ साधना के लिए आते हैं, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आ रहे हैं. इसके अंदर आपको मैं समय दे रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ. अगर कोई XYZ, सपोज आश्रम के अंदर, मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ, क्योंकि यही उदाहरण वहां रहा है. इसके अंदर मेरी यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी है, इसमें अभी तो खैर सारे सारे समझदार हैं, पर वो ये कहते थे कैसा बेवकूफ आदमी, देविका जी आई और कोई दूसरा काम नहीं करा, इसने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया. और ये भाव अगर उसके ये तो ग्रेट साधक है, ये ईगो जैसे ही आता है, ये वाली चीजें उठनी शुरू हो जाती हैं. वो ही वहां उठ रही थी. इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये जो समर्पण की, रिजेक्शन की, एस्पिरेशन की, ये ठीक है एक दायरे में, पर एक्चुअल धरातल दूसरा है, जो कि इन पत्रों से एकदम स्पष्ट, मतलब ये तो आप देखिए बार्गेन किस स्तर का कर रहे हैं. और आर सीकिंग फॉर लाइट, द अदर्स डू नॉट कम हियर, though some still would. D always expresses adoration for the mother and myself. She has always known us since the mother first came to India. तो कैसे लोग रहे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दिलीप कुमार रॉय की है, उनके पास आके उनके मित्र रुकते होंगे, बंगाल से लोग आते होंगे. अरे भाई दिलीप कुमार रॉय वहां रह रहे हैं बंगाल से, तो इनके संबंध में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. थे ये 3-4 परिवार, 5 परिवार इस तरीके के थे, जिनको भाई इनके सुविधाएं थी इस तरीके की. कुछ जो थे वो डायरेक्टली आश्रमाइट नहीं थे, एसोसिएटेड जरूर थे, वो कुछ परिवार भी थे, पर उनकी तो बात यहां नहीं हो सकती, क्योंकि वो डायरेक्टली आश्रम से यो नहीं थे, एसोसिएटेड थे, पर इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपने घर अलग थे, उनका लंबे समय से वो आश्रम से क्लोजली एसोसिएटेड रहे, अपना बिजनेस सारा वहीं, पर वो आश्रम में वैसे नहीं आए, वो अलग चीज है. तो ऑलवेज डी ऑलवेज एक्सप्रेसेड adoration for the mother and myself. She has always known us since the mother first came to India. Even so, this time also X refused to have her in his house, so she was put in ease. Shri Aurobindo justifications दे रहे हैं. It is not a bad progress for a man who has been here only a little over a year and had, when he came, 1,000 ties with the world. 1000 टाइज जिसकी जगत के साथ थी, अब वो यहाँ आश्रम में तो आएंगे ही भाई, वो आश्रम में आएंगे. आज मेरी अपनी एक व्यवस्था मेरे को करने की आवश्यकता पड़ने लग गई. किचन का अपना एक टाइमिंग है, मेरे से मिलने जुलने वाले, मेरे से बात करने वाले 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अगर मैं रहूंगा, मेरे को एक अलग से एक गाड़ी की सुविधा, अगर मैं रेगुलरली ट्रेवल करता हूं, मेरे को रेगुलरली टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, मैं पैकिंग कर रहा हूं, मेरे को 1-1, 2-2, 3-3 जनों की आवश्यकता, मेरे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं. काम के लिए जो जरूरी है वो है भाई, इसमें क्या बात है.
कोई बड़ी बात नहीं अगर मैं ये कहूं मेरे को अलग से एक गेस्ट हाउस 4 रूम मेरे को अलग से इंडिपेंडेंटली चाहिए। यही बात मेरे साथ जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके एनी टाइम गेस्ट्स भी आ रहे हैं, हम एक फील्ड में काम कर रहे हैं। माँ ये सारी चीजें जानती थी, जिसके लिए जो आवश्यक है वो उसको प्रदान कर रही थी। ये उनको सेंस नहीं है। It is also something that a man already marked out by some of the greatest English writers of the day as an equal of Keats and Shelley should renounce all publication and all fame and write only for myself and the mother and the sadhaks. तो ये ज्यादा तो रेफरेंस दिलीप कुमार रॉय का नजर आता है कि इतना जबरदस्त राइटर एक रहा है, वो अपने पब्लिकेशंस को रिनाउंस कैसे कर देगा, किस स्तर का वो एक राइटर है, इक्वल ऑफ कीट्स, शैली, ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स ऑफ द डे के बराबर जो व्यक्ति है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ये दिलीप कुमार रॉय के बारे में कह रहा है। और तो राइटर जो इस स्तर का राइटर, आपको इसी तरीके से इन सेंटेंसेस के पीछे जाके उस माहौल को समझो, बातों को समझो, साइकोलॉजी को समझो। आई नो हाउ इम्पॉसिबल सच ए रिनंसिएशन वुड बी टू मोस्ट पोएट्स। आ गई यही बात, पोएट भी वही है, राइटर भी वही है, उसको ये सुविधाएं दे रखी है, वहां जाके कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, सारे काम कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सुंदर, मतलब श्री अरबिंदो के लविंग लेटर्स हैं दिलीप कुमार रॉय को, इतने प्यारे लेटर्स हैं। इसी में पार्ट 2 में भी है, टाइटल भी उसका ये लविंग लेटर टू दिलीप कुमार डी के रॉय। आप देखना, श्री अरबिंदो ने इतना प्यारा लेटर लिखा है, आपकी आंखों में आंसू चल जाएंगे अगर आप उसको महसूस कर लो, कितना प्यार करते थे वो हर जने से, और हम डिमांड करने में कमी नहीं छोड़ते। फिर आई नो हाउ इम्पॉसिबल, ये तो हो गया। Such a renunciation would be to most poets and writers, and it seems to me it should be put to his credit as against any weaknesses he may still be unable to get over. इसलिए वो यहाँ इतना महान व्यक्ति होके भी स्टिक कर पा रहा है, ये क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, बजाय इसके कि उन कमियों को देखने की जिनको कि वो गेट ओवर नहीं कर पा रहा। ये तो समझ, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर आ गए, आश्रम में रह रहे हैं यार, उसके साथ व्यक्ति नहीं आएंगे? तो क्या सोचता है, मैं यदि कहीं चला जाऊंगा तो मेरा जो बैकग्राउंड है, क्या वो साथ, मेरे से आपका जो संबंध है वो कैसे रह जाएगा? अगर मैं कहीं भी हूं तो आपसे मेरा जो संबंध है वो विच्छेद कैसे हो जाएगा? या उनका सुभाष चंद्र बोस के साथ है, जिन जिन गणमान्य बेस्ट जो दुनिया के लोग थे, जो टॉप मोस्ट राइटर्स हैं, इंग्लिश राइटर्स, ग्रेटेस्ट राइटर्स, उनके साथ। फॉर द मैटर ऑफ दैट, who here has been able to become perfect in a year or two of sadhana? Not even the biggest saints or yogis. तो ये 34 में लिख रहे हैं, 28 के आसपास ये गए थे, दिलीप कुमार रॉय वहां चले गए थे, इसलिए कह रहे बड़ी जल्दी इसने देख क्या किया है। ये तो 28 के आसपास चले गए थे। The whole idea of great sadhaks and imitation of them is in fact a mistake. Not to imitate others, but to keep in mind the mother's will and try to follow it is what is asked from the sadhak. Certainly, if any sadhak had to be imitated in outward action, it would be Z and Y, not A or C. अब ये कौन रहे हैं? इनको श्री अरबिंदो अप्रूव कर रहे हैं, हाँ भाई ये ठीक है। But why do they want to imitate? Obedience to the mother is the rule of the sadhana, not imitation of A or C. As for the line in the Gita, कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग व्यवहार करते हैं वैसे वैसे दूसरे उसको फॉलो करते हैं। क्यों? It is a statement of what happens in the world, not a rule for sadhana. जगत में ऐसा होता है, रूल नहीं है ये। कितनी सुंदर बात है श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं। And the Shresht here is the yogi, is not the yogin, but those who are socially first, eminent and leaders. यहाँ श्रेष्ठ मतलब योगियों की बात नहीं चल रही। श्रेष्ठ लोग जिसको आप ये कह रहे हैं, अरे यार ये भी तो ऐसे कर रहा है, जैसे आजकल ये वीडियोस आते हैं अंक गणित के, इसमें जिसके ये बर्थडे हैं, देखो साहब इसके हाथ में अमिताभ बच्चन के ये है, इसके ये है, इसके वो है, वो आप सफलता के मानक मानते हो, वो आपके लिए श्रेष्ठ हो गया, उसका योग से क्या लेना देना?
ये मैंने एक आध आपको इस वॉल्यूम के दे दी। अगली बार शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और है, वो हम इससे कुछ-कुछ आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है। हाँ, पंकज देविका भाई, जी। ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आई कि क्या? and Shreshtha here is not the yogin but those who are socially first, eminent हाँ, and यही तो मैं कह रहा हूँ। हियर मतलब आश्रम की बात नहीं कर रहे। हाँ जी, ये तो गीता के अंदर जो श्लोक है, गीता का श्लोक है ये, हाँ कि ये जो जैसे इधर हाँ, ये फुटनोट में है, जैसे-जैसे श्रेष्ठ लोग व्यवहार करते हैं, दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, यहाँ श्रेष्ठ की बात कोई योगी से नहीं हो रही। यहाँ तो जिसको आप श्रेष्ठ कह देते हो, तो इसी का उदाहरण मैंने दिया कि जी आपका बर्थ डेट ये वाला है, तो आपके देखो ये होगा। और वो किससे आपको उदाहरण देते हैं? ये फ़िल्म स्टार्स या फिर ये स्पोर्ट्स पर्सन जो फर्स्ट, भई श्रेष्ठ आपके लिए तो वो है जो आपके उस समय, जो भी समय विशेष के ऊपर सफलता के मानक रहें। और सफलता जगत की क्या है? ट्रांजिटरी। सफलता किसको मानते हो? कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं योगी की बात नहीं हो रही। ये एक एक जो एमिनेंट लीडर कोई आप कहते हो तो ये मोदी जी, इसलिए आप उनकी बर्थ डेट निकालोगे, कुंडली निकालोगे कि इस समय पैदा हुआ, हाँ, इसके भी राजयोग है, इसके भी धन योग है, इसके ये योग है। ये घटिया आदमियों की घटिया सोचें रहती है। साधक ऐसी बातें करता नहीं। व्यक्ति इससे परे जाता नहीं। साधक इन चीज़ों में जाता नहीं। दूसरा व्यक्ति इसमें प्रवेश करता नहीं। उसको इससे सरोकार नहीं। अब ये मानसिकता कैसे समझाओ? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं समझते ये, कुछ भी नहीं समझते। बस कुछ लेटर ये रिवील करते हैं ना, ये तो ये सामने देखो। हाँ जी पंकज भाई, बट एक चीज जो मेरे को समझ नहीं आ रही है वो ये है, मतलब बार बार यही क्वेश्चन आता रहता है कि एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। जैसे आपका है आश्रम हो गया, दिल्ली आश्रम हो गया, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट है, और जो हम यहाँ पे रह रहे हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे, अब जैसे हम वीकेंड्स है, वीकेंड्स में घूमने फिरने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में है, न्यूज़पेपर की उधर बात करी थी, तो न्यूज़पेपर वगैरह या ये सब पढ़ लिया कर लिया। तो अब यहाँ पे फिर हार्डकोर साधना कैसे होगी? हार्डकोर साधना तो फिर आश्रम में ही हो सकती है। नहीं? वहां तो वहां तो अपने आप ही वो सिस्टम अलग है, वहां के लोगों की चेतना हो गई। हाँ, पर शुरू में जिसने इनिशिएट किया होगा आश्रम का सेटअप, आश्रम मतलब कुछ आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स जो साथ में रह के उस संस्था को आप आश्रम का नाम देते हो। वही तो है। कोई प्रेमिसेस को आश्रम का नाम थोड़ी देते हो। तो किसी ने तो इनिशिएट किया ही होगा। हाँ वो जी, इनिशिएशन अगर आपके अंदर वहाँ हार्डकोर हार्डकोर क्या होता है? आपके अंदर अगर ये, और अपन तो इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि ये होता नहीं है। एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन जो आप ये बातें कर रहे हो, वो अपने आप में कितनी मुश्किल बात है। एक, आप कह रहे हो कि ये वहाँ रह के कैसे हो सकता है? अरे तो जो व्यक्ति पहले गया था, उसने तो निर्माण, श्री अरबिंदो गए थे तब आश्रम मिला थोड़ी था उनको बना-बनाया। कोई तो हाँ, निर्माण करता ही है। की टाइम की बात कर रही हूँ कि जो पर्सन कहेगा मुझे तो साधना ही करनी है, बट वो परिवार के अंदर है, और फिर अभी अंदर से ये हुक्म तो आया नहीं है, हर एक के पास ये अंदर का हुक्म नहीं आता कि हाँ भी आपको परिवार छोड़ना है और जाना है। वो तो आपको एक क्लैरिटी हाँ, आनी चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप ठीक पकड़ रहे हो इसको। टू स्टार्ट विथ, ये भीतर से एक शिफ्ट आए बिना ये चीज़ें डिटेल्स तो बाद में आएँगी ना देविका जी। आप अंदर से शिफ्ट आया नहीं तो ये प्रश्न नहीं उठते। दूसरे वाले प्रश्न तो बाद में उठते हैं। आपके अगर ये शिफ्ट आ जाता है, और मैं कह रहा हूँ ये शिफ्ट आने के बावजूद ये इश्यू होते हैं, मैं तो बाद की बात बता रहा हूँ, पहले की नहीं बता रहा। शिफ्ट कैसे आ सकता है? अब अपन वही तो तैयारी कर रहे हैं उस शिफ्ट की। हम ये तैयारी उसी की कर रहे हैं, और मैं बार-बार आगाह कर रहा हूँ कि ये आने के बावजूद भी यात्रा मुश्किल है, उसमें ये चीज़ें आती हैं। बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो, पर मैं तो बार-बार गूँथते आ रहा हूँ इन बातों को। ये तो मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ। वो न मान बैठो, वो न मान बैठो, न मान बैठो। वहाँ मान बैठो जहाँ है ही नहीं। कौन-सी एस्पिरेशन, कौन-सा रिजेक्शन। अब तो प्रश्न सही उठने शुरू हुए। अब तो इसकी गंभीरता शुरू हुई है। हाँ यही जी, तो मैं कह रहा हूँ। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि इसके लिए आपको वो छोड़ने की आवश्यकता है।
पर मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए शिफ्ट चेंज होने की जरूरत है, भीतर से आपका ओरिएंटेशन चेंज होने की जरूरत है। वो बता देगा यहां रहना है या नहीं रहना है, कहाँ जाना है या यहाँ। अगर वो शिफ्ट हो जाता आप वहां चेंज कर दोगे, एकदम बदल दोगे। अगर आप मेरे पास हो तो बदलना पड़ेगा आपको। अगर आप मेरे संपर्क में रहते हो, आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे पास रह ही नहीं सकते। अगर आप मेरे संपर्क में, मेरे नजदीक अगर रहते हो, आप अनकंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है और गंभीर परिणाम आपके परिवार में निकल जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के कुछ हो जाए। आपको अगर मेरे पास हो तो ये चेंजेस, आप सोचिए ये क्या हुआ, ट्रेन ऑफ इवेंट्स क्या है, ये मैं जानता हूं। ये बड़ी विचित्र बात है। अब इसकी तो बात कर ही नहीं जा सकती, मैं तो कह रहा हूं करके देख लो क्या क्या परिणाम आते हैं इसके। आप कर ही नहीं सकते ये चीज, तो ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे कह रहा हूं ये बात, क्योंकि बीइंग में और कोई दूसरी चीज है नहीं। अगर आप मेरे पास हो तो उसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना पड़ेगा, जी जो भी वाइब्रेशन है उस पे वाइब्रेट करना पड़ेगा, तो वो आपकी सारी चीज को अलाइनमेंट में ले आएगी। उस अलाइनमेंट में यदि आपके अंदर साइकिक है या कोई सपोर्टिव सिस्टम है, तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया अब शुरू होगी। शुद्धिकरण को स्वीकार कर लेगी। जैसे आपने सब्जी चढ़ाई तो हीट भी होगी, उसमें बुलबुले भी उठेंगे। आप अगर दूध को कढ़ा रहे हो, उसको तेज आपके कोई चीज चढ़ रही है या कोई खिचड़ी चढ़ रही है, तो वो छींटे उछल के आपके ऊपर भी आ सकते हैं, आपके भी कुछ हो सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं शुद्धिकरण की तब शुरू होंगी, आप अपने आप से नहीं कर सकते। उसमें माहौल, उसमें चीजें, एक व्यक्ति कौन है जिसके अंदर इतनी पावर है जो ये कर ले। वो तो श्री अरविंदो के इर्द गिर्द सारे आ गए, या कोई एक व्यक्ति है उसके इर्द गिर्द आ गए। आप जो नाम ले रहे हो वहां भी कोई काम हो रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं। वहां तो अभी और फंडामेंटल की जरूरत है। इसमें जो माँ श्री अरविंद कह रहे हैं उनकी उपस्थिति में ये बातें हैं। जब माँ को नीचा दिखाने की कोई कोशिश कर सकता है, ये तो आपकी कल्पना से परे की बात है। यार ऐसे कैसे हो सकता है, मार डालो ऐसे आदमी को, इसको तो मार ही देना चाहिए। आपके तो तुरंत ये आएगा भक्ति के अंदर होके, हो सकता है आप उसको मार भी डालो कि मैं तो भक्त हूँ माँ श्री अरविंद का। श्री अरविंद कह रहे पड़े रहने दो इसको, यहाँ बाहर जाके और ये नेगेटिविटी फैलाएगा, रखो इसको, खाना दो प्रेम से। कितने लोग थे ऐसे। एक्चुअल पिक्चर अब धीरे धीरे की साधना ऐसी थोड़ी कोई है। इसीलिए साधना कहते हैं शूरवीरों का काम है। ये चिकन हार्टेड लोगों का थोड़ी है। बैठ गए जी हमको तो ये ब्लड रिलेशन इतने भारी पड़ रहे हैं। आप चिकन हार्टेड हो, आप कुछ नहीं हो, आप आदमी नहीं हो बस। हाँ जी। कुछ सेंस आ रहा है इससे, कुछ पर्सपेक्टिव आ रहा है इससे। अब दामोदर को आप शुरू से पहला चैप्टर फिर पढ़ जाना, इस सारे को बार बार रिपीट करते रहो इसको, फिर से फिर से। ये चर्चा दूसरे आयाम की, श्री अरबिंदो जो हार्डकोर इसके अंदर की बात है वो उसकी कर रहे हैं। साइकोलॉजी आपकी कैसे रिएक्ट करती है, वो साधक कमजोर नहीं हो गया इस बात से। साधक तो है ही वही, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो गया। आप ये मत सोचो कि वो साधक बदमाश है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है ये सारी। शुद्धिकरण हो सकता है पहले शुरू हो जाए, साथ साथ हो जाए, बाद में हो। ये आप कोई हार्ड कोई ऐसे नहीं है कि आप जबरदस्ती करो कि पहले ही शुद्धिकरण हो कैसे हो नहीं हो, ये फिर बाद की बातें हैं। ये डिटेल्स भी चर्चा करी जा सकती हैं, पर अलग अलग की अलग अलग हैं। यहाँ भी मान लो हम 7 जने हैं, पर सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं। कोई किस तरीके से आया, कोई किस तरीके से आया। मेरे को पता ही नहीं था कई बातों का, पहले मेरे लिए सहज है वो। आज कुछ बातें निकल के आ रही हैं जो सहज उस तरीके से नहीं है। कुछ मेरा काम सिखा रहा है, कुछ माँ की कृपा जो है आप लोगों से बातचीत करने में और के अंदर कितनी कितनी चीजें फ्लो करती हैं। आप ये भी देख पा रहे हैं, मेरे को आगे का सेंटेंस का पता नहीं, तो भी चीजें खुद फ्लो कर जाती हैं। अब वो तो वो सिखा रहे हैं। जब एक ऐसी चीज आपको सिखा रही है तो आप फिर बाद में आनंद के जगत में रहते हैं। फिर आप कह रहे कर लो, सो कुछ भी कर सकते हो आप तो। और इसमें भी मेरे को ये नहीं है कि हो सकता है वहम में ही मैं जी रहा हूँ। वहम के अलावा तो जी ही नहीं सकते आप। वहम तो है ही है, पर ये अगर आभास हो तो कम से कम आप वो इतना वायलेंट नहीं होगे। आप खुद के ऊपर आग्रह, मैंने तो ये देखा, मैंने तो ये जाना, क्योंकि आपने तो कुछ देखा ही नहीं,
उससे ज्यादा तो मैं सेल्फ श्योर होना चाहिए, मैंने जो अनुभव किया वो तो बहुत ज्यादा सिक्योर ग्राउंड के ऊपर है। अब जैसे ही इस ग्राउंड पे हूं मैं तो और ज्यादा वायलेंट हो जाऊंगा। कहूं वैसे वायलेंस नहीं कि कोई मैं मारना कूटना शुरू कर दूं, पर मैं अगर तुम जानते क्या हो, ये बात तो मेरे मुंह से आ ही सकती है। तुम हो कौन, तुमने देखा क्या है। ये बात सच्ची भी हो सकती है और ये बात इगोइस्टिक भी हो सकती है। ये मेरा जो क्लेम है ये वेल फाउंडेड भी हो सकता है, इगोइस्टिक भी हो सकता है। ये इश्यूज अब हम देखो प्रैक्टिकल्स में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो बातें हैं सामान्य आप जनता से ये बातें नहीं कर सकते। ठीक है ना। हाँ उर्मिला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रणाम सभी को। ये जो लेटर्स हमने पढ़े हैं वो तकरीबन 90-100 साल पुराने समय की बातें हैं। हाँ। और उस समय बिल्कुल ही भारतीय मन काफी संकुचित रहा और काफी सारे रिसोर्सेस के प्रॉब्लम, और उस वक्त की मानसिकता ही बहुत अलग थी। लेकिन आज जो हम क्लास में बैठे हुए हैं, हमने काफी सारे प्रोग्रेस देखी है, काफी सारा बदलाव आया है। तो यहाँ थोड़ा कनेक्शन, या जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो दिलीप कुमार राय का जो प्रॉब्लम आया कि उनको सेपरेट किचन था, या जो भी उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट्स थे वहाँ के लोगों के कंपेयर में। तो अगर ये बात हम 7 लोगों के बीच में होती थी तो हम इसे बिल्कुल इशू नहीं बनाते थे कि उसका किचन है, वो अपने गेस्ट ला रहा है, वी आर ओके, वो उसको जो करना है करें, वी विल स्टे फोकस। जो माँ ने हमें असाइनमेंट दी है, जो माँ ने हमें जिम्मेदारी दी है, उसमें ही हमें पुष्पित पल्लवित रहना है। हमारी वो कॉलिंग है, हमारी वो ये कॉलिंग नहीं कि ये दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, और रिसोर्स कैसे यूज कर रहा है। हमारी कॉलिंग ये है, क्या 100% तहे दिल से हमारा दिल समर्पित है, और माँ की जो सॉफ्ट वॉइस हमारी अंतरात्मा में आवाज जो आ रही है, क्या हम उससे ट्यून्ड है। और हमारे लिए तो वही सबसे ग्रेट रिवॉर्ड है कि हमें माँ के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। उनके उनकी कृपा वर्षा हम पे हो रही है। ये यही भाव हमारे लिए बहुत हो गया जीने के लिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, क्या ये पॉइंट से आगे अगर हम कुछ माँ की डायरेक्शन में जा सके तो साधना में और हेल्प होगी, क्योंकि ऐसे लगता है कि हम लोग पुराने इश्यूज को उछाल के क्या ही प्राप्त कर रहे हैं। जब आप शुद्धिकरण करते हो, आप जो कह रहे हो वो भावनात्मक जगत में बिल्कुल ठीक है ये बात, पर जब आप मन की, प्राण की और शरीर की शुद्धिकरण की बात करते हो, ऐसे लेटर्स हैं दिलीप कुमार रॉय को जो अंतरंग आध्यात्मिकता के, पूर्ण आध्यात्मिकता के जो बेस्ट लेटर्स हैं वो इनको लिखे गए हैं, तो इनको सेंस है। इसीलिए मैंने कहा कि कभी समय मिलेगा तो योगी कृष्ण प्रेम पुस्तक निश्चित रूप से हमारी सोच समझ के परे है। वो जो बेस्ट राइटर्स इंग्लिश के या आध्यात्मिकता के अंदर जो अंतरंग से अंतरंग जो मुद्दे हैं आध्यात्मिकता के, फेथ है, सरेंडर है, कृपा है, वो क्या है, वो मामले जानने वाला व्यक्ति, उनके विषय में प्रश्न करने वाला व्यक्ति। बात ये नहीं है कि वो किचन की, बात ये है कि अगर ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस है वो मुद्दा किसी भी चीज को बना लेगी, तो हम समझते हैं यार किचन तो एक कॉमन सी बात है, पर जो हमारे लिए अनकॉमन है हम उससे रूबरू नहीं है ना। हमारे लिए कौन सी चीज टची है वो हम नहीं जानते। साधना में आने के बाद वो भाग ऊपर आ जाएंगे और आने चाहिए। जब प्योरिफिकेशन बीइंग का है, हम में से कौन है जो सिद्ध है। साधना कहते ही नाम उसका है कि प्योरिफिकेशन हो रहा है। साधना जब प्योरिफिकेशन का मतलब है वो भाग आपका, शुरुआत तो इसी से करोगे, साइकिक लेके ही आप इसमें प्रवेश करोगे, नहीं तो प्रवेश कर भी नहीं सकते। ये सारी बातें जितनी भी है आपके सो कॉल्ड कथाकार भी करेंगे, ये सारी बातें सब करेंगे। पुस्तकें बहुत सुंदर सुंदर छपती हैं, नैतिक आपके जितने भी कॉलम्स है बहुत सुंदर छपते हैं, उसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। इश्यूज प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इश्यूज सैद्धांतिक नहीं होते, क्योंकि इस सिद्धांत पे तो आ ही जाता है व्यक्ति। अब जब आपका शुद्धिकरण शुरू होगा
तो फिर बाद में और वो श्री अरबिंदो ने लिखा है, सिंथेसिस के अंदर है ये, और उसका कारण क्या है, इसके अंदर एक सेपरेटिव ईगो है। ये हम समय से, क्योंकि अब लंबा हो गया, ये कारण हम इसमें जाने का प्रयास करेंगे। इश्यू ये नहीं कि उसको किचन से दिक्कत थी। इतने समझदार लोग थे, हो सकता है किसी दूसरी चीज से इश्यू ही ना हो, पर गुरु के सानिध्य से तो इश्यू हो ही जाएगा। आपने क्या प्राप्त किया या क्या नहीं प्राप्त किया, आप मुड़ के नहीं देखोगे कि मैंने कुछ प्राप्त किया भी है या नहीं है, मैं सिंसियर हूं या नहीं हूं, ये प्रश्न भी तो करोगे। आपने माँ के हाथों में अपने आप को छोड़ दिया। आपको फेथ और डाउट, फेथ मतलब आंखें बंद करके आपने कर लिया, तो कहां डाउट की उपयोगिता है, कहां फेथ की उपयोगिता है, ये प्रश्न उठ जाएगा। जो सिंसियर व्यक्ति है मार्ग के अंदर, उसके ये प्रश्न उठे बिना नहीं रह सकते, उठने चाहिए भी। ये गंभीर प्रश्न थे और आज भी हैं। ये कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी हुई है। मां श्री अरविंद के पत्रों की बातें कोई बहुत पुरानी थोड़ी है। बाहरी सेटअप की तो बात के अंदर फर्क हो सकता है, पर मां ने तो इंटरनेशनल लेवल की चीजें एस्टेब्लिश करी हैं। प्रेस आज भी टॉप मोस्ट लेवल की है, स्पोर्ट्स ग्राउंड आज भी टॉप मोस्ट लेवल का है। उनके जो मानक हैं, हमने विश्व ने आउटडू नहीं किए उनको अभी तक, जी, इसलिए हम मेरा ये नहीं। वही मुद्दा है कि जब इतनी मौल्यवान अद्भुत चीजों का जन्म हो रहा था, साधक क्यों ये कंपटीशन में या एक दूसरे के लाइफ ईगो में के कारण, देखने। ईगो, हाँ, ईगो है। तो मैं ईगो अगर फंडामेंटल फ्रेमवर्क है। ईगो, हाँ, तो ईगो हम क्या? तो वहां झांकते कि ये जो निर्माण हो रहा है, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल का है, वहां अपनी थोड़ी एनर्जी, अटेंशन हाँ, और ये वो और सब। बड़ी मूर्खता है। आप जो बात कर रहे हो ये और बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आपका ध्यान उस दूसरी बात के ऊपर है, जबकि वो सारा प्रयास एक नई चेतना, दिव्य चेतना लाने के लिए है। उसके लिए हो सकता है एक रूम का सेटअप हो सकता है उसके लिए एक भवन का विशाल, पूरे एक एक आपके प्रांत का निर्माण है, या एक लोकेलिटी का, एक टाउनशिप का निर्माण है। हमारी इंद्रियों को नजर आता है, भीतर की चीज नजर नहीं आती। इसमें फॉल डाउन किए बिना हम रह ही नहीं सकते। ये प्रमाण आ गया ना। आप जो कह रहे हो वो और बड़ी मूर्खता है, इसको ध्यान से देखो आप। हमको क्या पता क्या निर्माण चल रहा है, व्यक्ति की उथल पुथल, ये मैंने आपने सुना नहीं। कृष्ण प्रेम है, उसके ये क्वेश्चनिंग नहीं थी, वो उसकी साधना यूं स्विफ्टली चली गई, पर उसने कोई ज्यादा चीज उपलब्ध कर ली हो। दिलीप कुमार रॉय में बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग थी, पर आप ये नहीं कह सकते जो इसने उपलब्ध किया कोई कम उपलब्ध किया। इसलिए बाहरी तरीके से कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं जान सकते। यहाँ का कार्य एक ही है, आप जो हो उसको कैसे भी आप वो बन जाओ। आपका जो मार्ग है, वो सारी प्रक्रियाएं आ जाएंगी। अगर आप उस ओर चल रहे हो तो अच्छी हैं, उस ओर नहीं चल रहे तो आपके जो गुण हैं वो भी दोष हैं। उस ओर चल रहे हो तो आपके दोष भी हैं, वो वास्तव में दोष नहीं है, वो गुण हैं, क्योंकि आप चल रहे हो मार्ग के ऊपर। ये नैतिकता वगैरह तो मनुष्यों की बनाई हुई है, गुण है, दोष है, अच्छा है, बुरा है, हम कुछ नहीं जानते। ये सारी बातें भी माइंड को थोड़ा सा लचीला बनाने के लिए है, आपको इस चीज के ऊपर ये एक साहस देने के लिए भी है। आप ये सोचो कि मेरे अंदर तो ये संभावनाएं नहीं है, या मेरे अंदर तो ये कमियां हैं, वो आपको रोक नहीं सकती। अगर आप ये सोचो कि मेरी प्रकृति बहुत अच्छी मिली है, उससे आप प्राप्त कर लोगे, ये हो नहीं सकता। इन चीजों पे सुप्रीम रियलिटी की आपको यील्ड कर दे या न करे, इससे नहीं होता। या वहां एक नए जगत का निर्माण हो रहा है कि वहां इतनी बिल्डिंग बन रही है, इतनी बड़ी प्रेस बन रही है, इतने बड़ा ये, कुछ नहीं। इतना बड़ा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन बन रहा है, ये मुद्दे थोड़ी हैं। मुद्दा एकमात्र मैंने माँ के चरणों में अपने आप को कितना दिया, बस ये है। तो केंद्रीय चीज है इसी के अंदर। फेलियर इन साधना, ये हम पढ़ के गए थे। अब मैं इसको दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूं। हमारा मुद्दा अल्टीमेटली इस ग्रुप का क्या है, ये है तो सफलता है, नहीं तो असफलता है। आप जगत के राजा हो, इस लोक के नहीं तीनों लोकों के राजा हो, तो भी हो क्या, कुछ नहीं। ये देखो, एक
ये 29 का है। इफ देर इज रिफ्यूजल ऑफ द साइकिक, ये कई चीजें हैं। ये पेज नंबर साइकिक ओपनिंग, साइकिक एंड ओपनिंग 161 में पूरा ही पढ़ देता हूँ। व्हेन आई ओपन माई सेल्फ द मदर इन मेडिटेशन आई सॉ हर अप्रोचिंग मी विथ एन इन्फेंट इन हर आर्म्स। ये मैंने पहले भी पढ़ा था। एज शी केम नियर द गोल्डन पुरुष फ्राउंड एट हर एंड शी ड्रू बैक बिहाइंड यू। आई हैव सीन दिस विजन सेवरल टाइम्स। आप जो कह रहे हो सेटअप चेंज हो गया, हाँ बाहरी जगत का हो गया, अच्छे की ओर नहीं। वो जिस ओर हुआ है भगवान जाने वो क्या हुआ है, क्योंकि उसको चेतना काम में लेने वाली वो की वो है, इनफैक्ट अभी है ही नहीं तैयार। श्री अरबिंदो लाइफ डिवाइन में यही बात कह रहे हैं। इसलिए आज चेतना के आमूल परिवर्तन की आवश्यकता पहले से ज्यादा हो गई। पहले विज्ञान ने आपके हाथों में वो क्षमताएं, वो चीजें नहीं दी थी। आपके हाथ, आपकी चेतना तो ईगोइस्टिक की थी, हाथ में लकड़ी थी, या एक दूसरे को मुक्के मारने थे, तो मुक्के से क्या मार सकते हो। अब हाथ के अंदर आपके ऑटोमेटेड दे दिए, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने एआई तैयार कर दी, चेतना है वैसी की वैसी। तो अब इसके परिणाम जो हैं और ज्यादा घातक हैं। What I am to do, you fill my whole being, but despite opening myself to the mother, she is not allowed to approach me. Anyhow, मैं ये लास्ट का ही पढ़ देता हूँ आपके लिए। If there is refusal of the psychic new birth, a refusal to become the child newborn from the mother, owing to attachment to intellectual knowledge or mental ideas, ये होते कैसे हैं? Or to some vital desire, then there will be a failure in the sadhana. Only if it is accepted can his coming and doing sadhana here be fruitful. नहीं तो फेलियर है इन साधना। तो हमारा एकमात्र ध्यान ये है माँ के चरण, बस। तो मैंने वही तो सुस्पष्ट किया था, और अगली लाइन भी वही कहती है, कीप योरसेल्फ ओपन टू द मदर्स फोर्स। हाँ, तो मदर्स फोर्स ये भी ये जो क्रिएशन में है, मेरा मुद्दा यही था कि दूसरे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं ये देखने के बजाय, अगर हम विस्मय भाव से प्रेयरफुली मदर जो कर रही, मदर का फोर्स जो कर रहा है उसमें अगर रहते, ये मेरा मुद्दा था। पर आप दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते ना। आपको जो एटीट्यूड जचता है वो आप ले, उसके लिए दूसरा क्या करता है। हम तो अपनी प्रकृति की गांठें देख रहे हैं। क्या फंडामेंटली आप, मैं और आप ये मानते हैं हमारी प्रकृति में कोई गांठें नहीं है, शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, हमारे भी अपने हाँ, बस वही इश्यूज बात कर रहे हैं होंगे। हम। बस जी भाई, जी। हमको अपने शुद्धिकरण की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूँ मां श्री अरविंद की मौजूदगी के अंदर गुरु सामने मौजूद है तो इशू। मैं तो ये कह रहा हूँ, बात ये नहीं किचन की या और की, वो तो और हजार। अब आप कितनी एक एक चीज दुनिया में तो असंख्यों चीजें हैं, उनकी आप सारों की थोड़ी बात कर सकते हो। समझ रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। तो और यहाँ हो सकता है कि हमको आज यहाँ कुछ। जी जी। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम।